اس کا آسان یہ حل ہے کہ آپ لوگ پڑھیے، کتاب پڑھیے، سلائڈ پڑھیے، ٹرمینالوجیز کو سمجھیے. ٹھیک ہے سر. ٹرمینالوجیز سمجھنے سے سبجیکٹ سمجھ میں آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم اشیاء دیا گیا تھا. یہ چیزوں کے نام بتا دیے تھے اللہ تعالیٰ نے. جی سر. سوری سر. ایک منٹ. تم لوگوں کو پڑھا کر مجھے زکام ہو جاتے ہے اور تم لوگ کہتے ہو کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. سوری سر. سر ویدر بہت خراب ہے. ہاں نہیں، میرا گلا خراب ہو جاتا ہے یار. ایک دن میں 8 گھنٹے پڑھانا کوئی انسانیت ہے؟ جی سر. ہاں کیا کریں. تو مگر یہ کہ تم لوگ پھر خود سے پڑھتے ہی نہیں ہو. اب سپلائی چین کتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. سپلائی چین میں آپ کو آرام سے آپ چلے جائیں. اگر آپ چلے جائیں کینیڈا میں، امریکہ میں، تو آپ کو سپلائی چین کے اگر آپ نے اچھے آپ کی نالج ہے تو آپ کو $1,00,000 $1.5 lakh سالانہ کی جاب مل جائے گی. جی سر. یو کین لیو گڈ کوالٹی لائف. سپلائی چین میں لوگوں کی شارٹیج ہے. سپلائی چین میں لوگ ہی نہیں مل رہے. پتہ اسی ہے لیے نا آپ کو؟ ہوں گے نا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کسی کو. ہاں تو جو چیز سمجھ میں آئے نا سب کو، تو اس کے پیسے کم ملتے ہیں. جی سر وہ تو ہے، کیونکہ عوام بہت ہوتی ہے نا پھر. ہاں تو سب کو سمجھ آ رہی ہے تو پھر اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. جی سر. جب سب کو سمجھ میں نہیں آئے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ کو ایک کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. یس سر. یو آر یو رائٹ. نیڈ ٹو گین دیٹ کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج. وہ انشاءاللہ سر. کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج گین کرنے کے لیے یہ سبجیکٹ آپ کو سمجھنا پڑے گا. انشاءاللہ سر. اور یہ سبجیکٹ آج اسی طرح امپورٹنٹ ہے جیسے کہ پاسٹ میں مارکیٹنگ امپورٹنٹ. جی. مارکیٹنگ کے لوگ چیف ایگزیکٹو بن رہے تھے. آج یہ سبجیکٹ اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے. جی سر. اس سبجیکٹ کو آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک جی ہے. سر اب کی پوری ٹرائی کروں گی انشاءاللہ. جی تو پڑھا کریں نا. روزانہ 3-4 گھنٹے آپ اپنے گھر میں بنا لیں کہ بھائی میں نے 4 گھنٹے پڑھنا ہے روز. جی سر. تو سر باقی تو چیپٹر پڑھتی ہوں لیکن کچھ سمجھ میں آتا ہے، کچھ نہیں آتا، تھوڑا مکس ہو جاتا ہے. آج کل تو بڑی آسانی ہے کہ آپ پڑھنے بیٹھے نہیں سمجھ میں آئے، کوئی ٹرمینالوجی نہیں سمجھ گوگل میں کر آئی، لیں. جی. آپ گوگل کر لیں، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، جی سر. آپ زہیر سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے، گروپ میں پوچھ لیں. جی ٹھیک سر. ہے. تو آج کل تو یہ آسانیاں ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے جیسے بابے بھی جو ہے نا نئی نئی چیزوں کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. جب میں نے ایم بی کیا تھا اس زمانے میں سپلائی چین کے نام کا کوئی سبجیکٹ ہی نہیں تھا. جی سر آپ کے ٹائم پہ، لیکن ماشاءاللہ سر آپ نے تو دیکھیں کتنا اچھا سب پڑھا ہوا ہے کہ ہمیں پڑھا رہے ہیں آج. یہ تو آپ بھی کر سکتی ہیں. اس کا مطلب ہے اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتی ہیں. نہیں سر میں آپ کے لیول کی تھوڑی ہوں، ماشاءاللہ آپ کا. کیوں؟ سر بڑی میں محنت لگتی ہے. نہیں ہوں نا. آپ کی عمر میں اس سے زیادہ بے وقوف تھا جتنی آپ ہیں. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں. سر بٹ دیکھیں ٹرائی تو کرتی ہوں لیکن شاید اتنا اچھا ہو نہیں پاتا. آئی ڈونٹ نو ریزن کیا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. یس یہ سر. چیزیں جو ہے وہ فوراً نہیں ہوتی ہیں. اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، تھوڑی سر یہ محنت ٹینشن لگتی ہو رہی ہے، مڈ ٹرم سر پہ ہے اور ابھی کچھ بھی اتنا کلیئر نہیں ہو رہا، تو مڈ ٹرم میں کیا کریں تو گے. پڑھنا نہیں کیا شروع کیا نا تم نے؟ پڑھائی شروع کرو. جی سر. سر پڑھا ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفیکلٹ سی. بھائی تم سلائڈس کو گو تھرو کرو گی تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر سلائڈ سے بھی پڑھ رہی ہو تو جی سلائڈ میں تم نے جو جو چیزیں ہیں اس کو گوگل پہ سرچ کرو، کتاب سر میں جا آپ کے کی دیکھو. ویڈیوز دیکھوں گی، اس سے کافی ہیلپ ہو جاتی ہے. اس دفعہ بھی مارکیٹنگ میں آپ کی ویڈیوز سے کافی ہیلپ ہوئی تھی، وہ اس سے ہاں ویڈیوز انشاءاللہ. دیکھے بھائی، کسی نے منع تھوڑی کیا. نہیں سر اس سے انشاءاللہ ہو جائے گا. میں تو اپنی ساری چیزیں پبلک اسی لیے کرتا ہوں. پھر اس میں آپ بہت ایزی وے میں سمجھا دیتے ہیں. اس میں تو پھر بھی ہوتا ہے کچھ مسنگ ہو گیا لکھنے سے، رائٹ ڈاؤن نہیں ہو پایا، اس میں بہت ایزیلی ہو جاتا ہے. چلیں گڈ. تو ٹرائی جاری رکھیں، آپ سیکھ تھینک جائیں یو گے. سر. ٹھیک ہے. اچھا جناب، رول آف لاجسٹکس ان سپلائی چین، یہ ہمارا چیپٹر ہے اور یہ چیپٹر 3 ہے. کیسے جاتا ہے یار، یہ کیوں نہیں جا رہا؟ نیکسٹ سلائڈ کیوں نہیں جا رہا؟
यहाँ जाके करना पड़ेगा। Am I on the next slide? जी जी Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो जो डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे वो है वैल्यू एडेड रोल्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में कौन सी वैल्यू एडिशन होती है जिसकी वजह से आप कस्टमर को बेहतर सर्विस कर सकते हैं। और फिर लॉजिस्टिक्स का मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये मैं आप लोगों को कई दफ़ा समझा चुका हूँ। लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि आप वो पूरा सिस्टम बनाएं जिसकी वजह से प्रोडक्ट आपके प्रेमिसेस से कस्टमर के हैंड्स में आ सके। ये यहाँ से लेकर के वहाँ तक की एक्टिविटी लॉजिस्टिक्स में शामिल है। हम देखेंगे कि की लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। लॉजिस्टिक्स का मैक्रो पर्सपेक्टिव क्या है, यानी आप अगर टॉप लेवल पे देख रहे हैं तो लॉजिस्टिक्स क्या है, और उसके माइक्रो डिटेल्स क्या है, छोटी छोटी डिटेल्स क्या है, और फिर लॉजिस्टिक्स के सिस्टम एनालिसिस कैसे करते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, ये चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे इन्होंने लॉजिस्टिक्स को समझाने के लिए कहा है, वो कहा है कि 4 मेजर सब डिविजन्स में सप्लाई करके बताया गया। एक है बिजनेस लॉजिस्टिक्स। बिजनेस लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है बिजनेस के अंदर जो आप सप्लाई चेन बनाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं ताकि फ्लो हो सके, स्टोरेज हो सके, गुड्स एंड सर्विसेज और रिलेटेड इंफॉर्मेशन का। जो सप्लाई चेन का मकसद होता है कि गुड्स को आप फ्लो कर सकें फ्रॉम फैक्ट्री टू एंड यूज़र, और उसी तरह सर्विसेज का भी फ्लो हो सके और इंफॉर्मेशन का भी फ्लो हो सके। तो ये है बिजनेस लॉजिस्टिक्स। दुनिया में सबसे पहले जो लॉजिस्टिक्स डेवलप हुई थी वो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स डेवलप। आपको पता है लॉजिस्टिक्स के बगैर मिलिट्री ऑपरेट ही नहीं कर सकती। कहीं पे भी जाने के लिए जो आपको मिलिट्री को फाइट करने के लिए अपने सेफ बेस से लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। इट कैन बी बाय सी, बाय एयर, बाय रोड। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब अफगान वॉर हुई थी तो अमेरिकन वेर वेरी कंसर्न कि पाकिस्तान के बेस मिल जाए तो पाकिस्तान के बेस से वो क्विकली पहुंच सकते हैं अफगानिस्तान में। तो मिलिट्री में लॉजिस्टिक्स इज़ द की। लॉजिस्टिक्स के बगैर योर आर्मीज कैन नॉट फाइट, बिकॉज उनको खाना चाहिए, मेडिसिन चाहिए, कपड़े चाहिए और दूसरे इस्तेमाल की चीज़ें चाहिए, बेड्स चाहिए, कैंप्स चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का जो हेड होता है वो आमतौर पर एक जनरल लेवल का ऑफिसर होता है, क्योंकि इसे मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इज़ द की, इज़ द बैकबोन। और मुसलमानों का जब दौर था, मुग़लों का यहाँ पे दौर था, तो यहाँ पे उसको खाने सामा कहते थे, जो लॉजिस्टिक्स का हेड होता था। और चूँकि अंग्रेज़ों ने आकर के उन तमाम ओहदों की तज़लील के लिए, उन ओहदों के लिए मुख्तलिफ आम काम के ऊपर उसको कर दिया। जैसे जो घर में जो काम करता है, खाना बनाता है, उसको खानसामा कह दिया, या जो बाथरूम साफ़ करता है उसको जमेदार कह दिया। जमेदार एक ओहदा हुआ करता था मुग़लों के ज़माने में, फ़ौज का बड़ा ओहदा होता था। तो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का नेवी में भी जो हेड होता है वो वाइस एडमिरल होता है। तो बिकॉज इट इज़ ए क्रिटिकल पोजीशन, और आपको हर सूरत में वो लॉजिस्टिक्स की लाइन मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी जब लड़ाई हो रही होती है तो आर्मी सबसे पहले कोशिश ये करती है, आपकी जो अपोजिंग आर्मी होती है, फाइटिंग आर्मी होती है, कि आपके लॉजिस्टिक्स लाइन को डिस्ट्रॉय कर दें। जब लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फौजों के लिए लड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर इवेंट लॉजिस्टिक्स होती है। ये सब लॉजिस्टिक्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। देखिए, बिजनेस लॉजिस्टिक्स के रिक्वायरमेंट इवेंट लॉजिस्टिक्स से डिफरेंट है, और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स से भी डिफरेंट है, क्योंकि आप एक दफ़ा बिजनेस लॉजिस्टिक्स बना देते हैं तो उसको जनरली नॉर्मली कोई डिस्ट्रॉय नहीं करता। लेकिन मिलिट्री लॉजिस्टिक्स में एक एडिशनल आपके पास इशू ये है कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए आप अल्टरनेट सप्लाई चेन पे लाइन पे भी काम कर रहे होते हैं ताकि उसे कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो इसलिए इन तमाम लॉजिस्टिक्स की नेचर एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर इवेंट लॉजिस्टिक्स है।
इवेंट लॉजिस्टिक्स क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पर अभी T20 हो रहा था, T20 के दुबई में सारी कंट्री की टीम्स आई हुई थी, 12 कंट्रीज की टीम्स आई हुई थी, उनके मैचेस हो रहे थे, डिफरेंट वेन्यूज पे वो मैचेस हो रहे थे। वेन्यूज को मैनेज करना, उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई को मेंटेन करना, अल्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त रखना, ताकि जस्ट इन केस अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए तो दूसरा अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या है। फिर वहाँ पे सिक्योरिटी का सिस्टम रखना, उनके लिए फूड रखना, जो लोग मैच देखने के लिए आए हैं उनको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, फूड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ड्रिंक्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, पर जो कमेंट्री कर रहे हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जो वीआईपी और सीआईपीज़ आई हैं उनको सीआईपीज़ और वीआईपी लाउंज में प्लेस करना, उनको एडिक्वेटली हैंडल करना, उनको सर्विसेज देना, ये सारी चीज़ें मिल करके इवेंट मैनेजमेंट को एक बहुत बड़ा पेनफुल एक्टिव वो बना जॉब बना देती है किसी भी मैनेजर के लिए। क्योंकि इवेंट अगर स्मूथली हो रहा होता है तो नो बडी लुक्स इनटू के हु इज मैनेजिंग दैट इवेंट, हु इज द सप्लाई चेन मैनेजर ऑफ दैट इवेंट। लेकिन अगर उसके अंदर कोई बुराई आ जाए तो सारा जो नजला गिरता है वो इवेंट मैनेजर के ऊपर। जैसे शादी होती है, आप तो हॉल में चले जाते हैं, आपने किसी को खाने का वो दे दिया है, वो खाना बना करके वो प्रेजेंट करता है, लेकिन उसके पीछे जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो शादी हॉल के लोग काम कर रहे होते हैं, और जो आपके जो फूड प्रोवाइडर है वो काम कर रहे होते हैं, जो आपके वेले होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, ताकि लोगों की गाड़ियाँ प्रॉपर तरीके से पार्क हो सके। इस तरह की सारी सर्विसेज आपके बैकग्राउंड में आपको दी जा रही होती है इवेंट में। आपको लगता है कि ये चीज़ें खुद ब खुद चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चल रहा होता है। जैसे यहाँ पे हमारे एक्सपो में इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं, या कोई पोगी होता है, पेट्रोलियम का इवेंट होता है, और दूसरे जो फूड के फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसको मैनेज करना, इस इवेंट को मैनेज करना इज़ क्वाइट अ कॉम्प्रिहेंसिव जॉब। तो ये इवेंट लॉजिस्टिक्स कहलाता है। फिर सर्विस लॉजिस्टिक्स है। सर्विस लॉजिस्टिक्स की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है आगा खान हॉस्पिटल। आगा खान आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आपको मेडिसिन मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। खुदा न खास्ता किसी को अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो इमरजेंसी में जा सकता है। किसी को मुख्तलिफ किस्म के, किसी को आई डॉक्टर को के डॉक्टर को दिखाना है, किसी को हार्ट के डॉक्टर को दिखाना है, किडनी के डॉक्टर को दिखाना है, किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है, साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है, किसी कोई क्विट स्मोकिंग के लिए जा रहा है हॉस्पिटल, सबके स्पेशलिस्ट मौजूद है। हॉस्पिटल्स जो है ये सारी चीज़ें आपको इतने रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड करती हैं कि आपके लिए अफोर्डेबल भी हो, क्योंकि डॉक्टर्स आर एक्सपेंसिव, मेडिसिन आर एक्सपेंसिव। फिर जो रूम्स वो आपके लिए बनाते हैं वो भी एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक तो रूम की अपनी कॉस्ट होती है, और उसके अंदर जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, मेडिकल पर्सनल वहाँ पे डिप्लॉय किए जाते हैं, इन सब चीज़ों की कॉस्ट होती है। तो वो कॉस्ट तो होती है, फिर उनके अंदर कंटिन्यूटी भी होती है कि आपको तो कुछ नहीं पता चलता कि आप जिस रूम में आराम कर रहे हैं उसके पीछे कोई एयर कंडीशनिंग के सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, कोई इन मेडिकल पर्सनल की ट्रेनिंग पे काम कर रहा है, कोई मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, कोई ऑक्सीजन सप्लाई का सिस्टम लगाया हुआ किसी ने वो काम कर रहा है, कोई आपके ब्लड प्रेशर और इन चीज़ों की मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो काम कर रहा है, उसके पीछे भी लोग हैं। तो ये सारा का सारा सर्विस लॉजिस्टिक्स कहलाता है। सर्विस लॉजिस्टिक्स में इशू ये होता है कि सर्विसेज जब प्रोड्यूस की जाती हैं तो उसको अगर आप अवेल कर लेते हैं तो दैट इज़ प्रॉफिटेबल, रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी के लिए। लेकिन सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं और कोई इसे अवेल नहीं करता है तो सर्विसेज वेजिटेबल से भी ज़्यादा पेरिशेबल है, बिकॉज इट पेरिश द मोमेंट इट इज़ प्रोड्यूस्ड इफ इट इज़ नॉट अवेल्ड। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठा हुआ है, लाइट चल रही है, एयर कंडीशन चल रहा है, सिस्टम्स लगे हुए हैं, और मेडिकल स्टाफ बैठा हुआ है, पेशेंट नहीं आ रहे। तो क्या है, आपने एक सर्विस को प्रोड्यूस किए और उस सर्विस की कॉस्ट है, ज़ाहिर है ये सारा जो सिस्टम चल रहा है उसकी एक कॉस्ट है, बट नो बडी इज अवेलिंग दैट। तो दैट कॉस्ट इज एडिंग टू द expenses of the
ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए हॉस्पिटल्स में क्या किया जाता है कि इस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और वो अपॉइंटमेंट्स इस तरह लेते हैं कि डॉक्टर्स को वो स्केर्स रखते हैं। किसी भी शोबे में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए अपॉइंटमेंट आपको 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद मिलती है। और एक ऑप्शन वो ये भी रखते हैं कि आप आ जाएं, अगर डॉक्टर के पास कोई अवेलेबल स्लॉट होगा, कोई पेशेंट टर्न अप नहीं हुआ, द डॉक्टर विल सी यू। ये इसलिए किया जाता है ताकि डॉक्टर के टाइम को सेव किया जा सके, क्योंकि डॉक्टर का टाइम सबसे एक्सपेंसिव टाइम है हॉस्पिटल के लिए। इसी तरह आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि जब आप हॉस्पिटल में एंटर होते हैं, आपको नंबर दिया जाता है। नंबर देने के बाद फिर वो आपका वेट चेक करते हैं, कोई ब्लड प्रेशर चेक करता है, कोई आपका फीवर चेक करता है, फिर आपको एक कमरे में बैठा देते हैं। अगर आपने ये नोटिस किया है या नहीं किया है, और डॉक्टर उस कमरे में खुद आता है, आपको देखता है, देखने के बाद फिर वो दूसरे कमरे में चला जाता है। यानी डॉक्टर इतना भी वेट नहीं करता है कि एक पेशेंट आए, उसको देखे, वो चला जाए तो दूसरा पेशेंट उसके कमरे में, बल्कि डॉक्टर के लिए 2 रूम्स का अरेंजमेंट किया जाता है, और डॉक्टर जो है इन बिटवीन दीज 2 रूम्स वॉक करता रहता है, सो दैट डॉक्टर कंटिन्यूटी के साथ अपने टाइम को यूटिलाइज कर सके। हैव यू नोटिस दैट? कभी नोटिस किया है आपने ये? यस सर, आगा खान में। जी बिल्कुल। ये इसलिए कि डॉक्टर के टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके और वो ऑपरेशन पूरा प्रॉफिटेबल है। तो ये इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं जब आप मास सर्विसेज दे रहे होते हैं, और मास लेवल पे आप कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट तरीके से सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए और लोग सर्विसेज को अवेल करें, देन इट बिकम्स प्रॉफिटेबल। तो ये सर्विस लॉजिस्टिक्स के डायनामिक्स हैं। अच्छा, वैल्यू एडेड रोल्स ऑफ लॉजिस्टिक्स क्या है? देखिए, आपके सर्विस की एक यूटिलिटी है। सर्विस को जिस वक्त प्रोड्यूस किया जाता है, उसी वक्त अवेल करने से सर्विस की वैल्यू बढ़ जाती है। सर्विस की सबसे जो कॉमन चीज़ है, दैट इज इकोनॉमिक यूटिलिटी। जैसे मैंने डॉक्टर की एग्जांपल दी, आगा खान उस वक्त तक डॉक्टर्स को डिप्लॉय करेगा जब तक कि इतने पेशेंट आते रहें जो इतने पैसे देते रहें कि उनके सारे एक्सपेंसेस रिकवर हो जाएं, प्लस उन्हें एक रीजनेबल प्रॉफिट हो जो उनके लिए एक्सेप्टेबल है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो कोई भी लॉजिस्टिक्स का आप सिस्टम बनाते हैं, उसकी इकोनॉमिक यूटिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी चीज़ की इकोनॉमिक यूटिलिटी नहीं है, तो उन सर्विसेज को आप ज़्यादा अरसे तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस इट इज़ ए चैरिटेबल सर्विस। चैरिटेबल सर्विस है, उसकी रिटर्न नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक यूटिलिटी नहीं है, लोग पैसे नहीं दे रहे, सर्विसेज अवेल कर रहे हैं फ्री में, लेकिन स्टिल इसकी इकोनॉमिक यूटिलिटी इस तरह है कि जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसकी कॉस्ट कुछ लोग पे कर रहे हैं, स्टिल देयर इज इकोनॉमिक यूटिलिटी। अगर लोग वो कॉस्ट पे ना करें तो ये सर्विसेज ईदी या कोई भी है, छिपा है, वो उसे प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो सबसे पहली चीज़ है कि उसकी इकोनॉमिक यूटिलिटी। आप मस्जिद में भी जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन देना बंद कर दें तो मस्जिद नहीं चल सकेगी। उसका बिजली का बिल है, उसके एयर कंडीशनर का बिल है, उसके और दूसरे सारे जो मुलाजमीन के बिल हैं, वो सारे वेजेस हैं, सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें यू अफोर्ड दैट, दैट्स व्हाई इट इज़ रनिंग। इवन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी जो सर्विसेज दे रही हैं आपको, उसकी भी इकोनॉमिक यूटिलिटी है। फिर टाइम यूटिलिटी है। टाइम यूटिलिटी क्या है कि सर्विस को किस टाइम पे प्रोड्यूस किया जाए कि लोग उसे अवेल करें। अगर आप उस टाइम पे प्रोड्यूस नहीं करेंगे जिस टाइम पे कस्टमर्स को ज़रूरत है, तो टाइम यूटिलिटी नहीं हो रही है सर्विसेज की। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी आप कोई आदमी अगर इमरजेंसी में जाता है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल उसे फ़ौरन एडमिट कर लेता है। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तो नहीं होते, लेकिन वो उसको टेम्पररी रिलीफ दे करके डायग्नोसिस का प्रोसेस शुरू करते हैं। फिर ये देखते हैं कि क्या इसकी कंडीशन इतनी सीरियस है, डॉक्टर्स को अभी ऑन इमरजेंसी कॉल किया जाए, या ये कि दिस पेशेंट कैन वेट टिल मॉर्निंग। तो फिर उसको वो रूम में शिफ्ट कर देते हैं और फिर मॉर्निंग में आकर के डॉक्टर देखता है।
تو یہ ٹائم یوٹیلیٹی ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ اویلیبل ہیں, ان ٹائمس پہ اگر ان ٹائم پہ جا کر کے آپ ان کی سروسز لے سکیں تو پھر آپ کو اویل کر سکتے ہیں. پھر فارم یوٹیلیٹی ہوتی ہے پروڈکٹس کی. پروڈکٹ کنزیومر ایک پرٹیکولر فارم میں کنزیوم کرنا چاہتے ہیں, جیسے کوکو کولا چلڈ فارم میں کنزیوم کریں گے. اگر آپ گرم باٹل دیں گے تو وہ ان کو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا. آئس کریم ان کو سالڈ فارم میں, فروزن فارم میں چاہیے. تو اس لیے آپ کو پورا جو ہے وہ فروزن سپلائی چین اینڈ ٹو اینڈ ریفریجریٹڈ سپلائی چین بنانا پڑتا ہے. فیکٹری سے وہ چیز نکلتی ہے تو وہ ایک ریفریجریٹڈ وین میں رکھی ہوتی ہے, اور جب یہ آپ کے ریٹیلر کے پاس آتی ہے تو ایک ڈیپ فریزر میں اسے رکھا جاتا ہے, تاکہ جب آپ کے پاس کنزمپشن کے لیے آئے تو وہ اس فارم میں ہو کہ آپ اسے یوٹیلائز کر سکیں. دس از کالڈ فارم. جیسے مثال کے طور پہ آپ لبریکینٹس خریدتے ہیں گاڑی کے لیے, وہ 4 لیٹر کے پیک میں ملتا ہے. 4 لیٹر کے پیک میں اس لیے ملتا ہے کہ آپ کی گاڑی کو 4 لیٹر کے لبریکینٹ کی ضرورت ہوتی ہے. نہ فل کرتے ہیں تو دیٹ از انف فار یور کار. دیٹ از فارم یوٹیلیٹی. اگر وہ 20 لیٹر بیچیں گے تو آپ کو پرابلم ہوگی. 20 لیٹر کے آپ خرید کر کیا کریں گے, پھر آپ سے کہیں اسٹور کریں, دیٹ از انکنوینئنٹ. اس لیے وہ آپ کو 4 لیٹر کی فارم میں دیتے ہیں. اور پوزیشن یوٹیلیٹی, کہ جو بھی پروڈکٹ یا سروسز ہیں وہ آپ ایکسکیوز می سر. جی جی یس سر ایک کوشچن ہے میرا. جی جی. جیسے سپلائی چین اور ایک لاجسٹک الگ الگ چیزیں دونوں, رائٹ؟ سپلائی چین اور لاجسٹک. لاجسٹکس از اے پارٹ آف سپلائی چین. جیسے پروکیورمنٹ ایک پارٹ ہے سپلائی چین کا, جی جی. اسی طریقے سے لاجسٹکس بھی ایک پارٹ ہے سپلائی چین کا. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے, یعنی اگر آپ سپلائی چین پڑھیں اور لاجسٹک پڑھیں, اگر ان کو ڈفرینشیٹ کریں تو یہ تو الگ الگ ٹاپکس ہونے چاہیے, الگ الگ جو ہے سبجیکٹس ہونے چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جو ہم پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان سپلائی چین کرا رہے ہیں اس میں ہم الگ الگ پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں لاجسٹکس الگ پڑھاتے ہیں, سپلائی چین کو سمرائز وے میں الگ پڑھاتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن الگ پڑھاتے ہیں, اس کے سارے کمپوننٹس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھاتے ہیں. جس طرح ہم مارکیٹنگ جو ہے ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھاتے ہیں کچھ کورسز میں, لیکن مارکیٹنگ مینجمنٹ میں مارکیٹنگ کے ڈفرینٹ سبجیکٹس کو پھر ہم پڑھاتے ہیں. تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یو کین ڈو پی جی ڈی ان سپلائی چین. ٹھیک ہے. لاجسٹک سپلائی چین کا وہ والا پارٹ ہے جو ڈیل کرتا ہے گڈس کو مینوفیکچرر سے لے کر کے اینڈ یوزر تک پہنچانے میں, یا سروسز کو پروڈیوسر سے لے کر کے اینڈ یوزر تک پہنچانے میں. ٹھیک ہے یہ ہے سر, سمجھ. لاجسٹکس کا. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم یہاں پہ اس ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ پی جی ڈی ان سپلائی چین کریں تو اٹ ول بی ڈسکسڈ ان دیٹ ڈیٹیل. پوزیشن یوٹیلیٹی اوکے سر, یہ ہے اوکے. کہ جی سوری اوکے سر, اوکے, سمجھ گیا میں. سمجھ گئے آپ. گڈ. تو پوزیشن یوٹیلیٹی یہ ہے کہ جناب آپ اس گڈس کو, اس سروس کو پوزیس کریں, یعنی یوٹیلائز کریں. دیٹ از پوزیشن. اس لیے کہ سیلز آف گڈس ایکٹ کے مطابق سیلز اس وقت کمپلیٹ ہوتی ہے جب پروڈکٹ فزیکل پوزیشن میں جائے فرام بائر ٹو سیلر, سوری سیلر ٹو بائر. تو یہ پوزیشن یوٹیلیٹی کہلاتی ہے. پھر کوانٹیٹی یوٹیلیٹی کہلاتی ہے. فار ایگزامپل آپ کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں, آپ کو اتنی بڑی تھالی میں سرو کر دیتا ہے کہ آپ اس کو پورا کھا ہی نہیں سکتے, تو آپ اس کا 1/4 کھاتے ہیں, بل آپ پورے کا پے کرتے ہیں. تو یہ کوانٹیٹی یوٹیلیٹی اچھی نہیں ہے. آپ پیک کرا لیتے ہیں, دیٹ از اندر میٹر. تو اس لیے ریسٹورینٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو فوڈ کا سرونگ سائز اتنا ہی ہوتا ہے جو ایک عام آدمی اسے کھا لے, تو دیٹ از کوانٹیٹی یوٹیلیٹی. اسی طریقے سے جب آپ کولڈ ڈرنک پینا چاہتے ہیں تو ظاہر آپ 250 ملی لیٹر کی بوٹل پینا چاہتے ہیں, دیٹ اے نارمل ہیومن بینگ کنزیومس, تو وہ کوانٹیٹی یوٹیلیٹی ہے. لیکن جب آپ پارٹی کرتے ہیں اپنے گھر میں تو پارٹی کرنے کے لیے آپ 2.5 لیٹر کی باٹل لیتے ہیں, کیونکہ وہ کوانٹیٹی یوٹیلیٹی اس میں اس کی ہے 2.5 لیٹر والی بوٹل. تو آپ کو ڈفرینٹ ٹائم میں ایک ہی پروڈکٹ ڈفرینٹ کوانٹیٹیز میں چاہیے, اس لیے جو پروڈیوسر ہے وہ آپ کو کوانٹیٹی یوٹیلیٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے. پھر پلیس یوٹیلیٹی ہے. پلیس کیا ہے کہ جناب آپ کو پروڈکٹ کنوینئنٹ پلیس پہ مل جائے, جب آپ کو اس کی ضرورت پڑے تو آپ اسے اویل کر سکیں.
जैसे आपको जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, आप जाते हैं इम्तियाज़ पे, नाहिद पे, आवाज़ पे और जा कर के वहाँ से ख़रीद ले लेते हैं या किसी भी रिटेल स्टोर से ख़रीद लेते हैं, तो ये एक प्लेस यूटिलिटी है। और जो प्रोडक्ट्स कन्वीनियंटली अवेलेबल नहीं होती हैं तो उनको सेल करने में डिफ़िकल्टी होती है। और अब तो प्लेस यूटिलिटी यहाँ तक पहुँच गई है कि कंज्यूमर कहता है भाई मुझे घर पे डिलीवर करो, आप घर पे डिलीवर कर देते हैं। तो ये इस तरह से अब 5 चीज़ें हैं जो कि इकोनॉमिक यूटिलिटी का हिस्सा है। और ये सब चीज़ें आप इकोनॉमिकली करेंगे जब कंज्यूमर परचेज करेगा। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव वे में नहीं करते तो फिर कंज्यूमर आपसे परचेज नहीं करेगा, किसी और से परचेज कर लेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 5 जो फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी है वो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जनाब, वो वैल्यू एडेड रोल ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसी को उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा ओपन करके बता दिया जो पिछली स्लाइड में बात की गई थी कि प्लेस, टाइम एंड क्वांटिटी यूटिलिटी, कि किस जगह के कन्वीनियंट जगह पे अवेलेबल है, कन्वीनियंट टाइम पे अवेलेबल है और रीजनेबल क्वांटिटी में अवेलेबल है जितना आप कंज्यूम करना चाहते हैं। फिर प्रोडक्शन की जो इस फॉर्म में आपको चाहिए उस फॉर्म में आपको अवेलेबल है, वो प्रोडक्शन फॉर्म यूटिलिटी है। और ये मार्केटिंग पोजीशन यूटिलिटी है कि जनाब कस्टमर के पास वो चीज़ पोजीशन में आ जाए। तो ये इन्होंने एक पाई चार्ट बना के दिखाया है कि प्लेस, टाइम एंड क्वांटिटी यूटिलिटी इज ऑलमोस्ट 50%, प्रोडक्शन फॉर्म यूटिलिटी इज ऑलमोस्ट 30% ऑफ लॉजिस्टिक्स एक्टिविटी एंड मार्केटिंग पोजीशन इज 20% ऑफ द लॉजिस्टिक्स एक्टिविटी। ओके, की लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। लॉजिस्टिक्स की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। मैंने आपसे अर्ज किया था कि लॉजिस्टिक्स का मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, बल्कि लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि फिनिश गुड्स को प्रोड्यूसर से लेकर के एंड यूज़र तक पहुँचाना या कंज्यूमर तक पहुँचाना, दैट इज़ लॉजिस्टिक्स। एंड यूज़र और कंज्यूमर में फ़र्क ये है कि कंज्यूमर उसे परचेज करता है और एंड यूज़र उसे यूज़ करता है। और कई केसेस में एंड यूज़र और कंज्यूमर सेम नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे बच्चे जब छोटे थे तो उनको पिज़्ज़ा पसंद था, तो मैं पिज़्ज़ा हट लेकर के जाता था, तो वो एंड यूज़र थे, वो पिज़्ज़ा खाते थे। मैं साथ देने के लिए कभी एक आध पीस खा लिया तो खा लिया, वरना वो भी नहीं खाता था। दे वर एंड यूज़र, आई वाज कंज्यूमर, क्योंकि मैं उसका बिल पे करता। तो इसलिए एंड यूज़र और कंज्यूमर अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं कि प्रोक्योरमेंट मैनेजर होता है, वो सारी चीज़ें परचेज करता है, लेकिन उनके कंज्यूमर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, ऑफिस स्टेशनरी है तो ऑफिस के लोग उसे यूज़ करते हैं। तो इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब यहाँ पे इसके अंदर सारे उन्होंने एक्टिविटीज़ बता दी हैं जो लॉजिस्टिक्स में होती है। और अगर आप लॉजिस्टिक्स के इंचार्ज हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये 12 एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप परफॉर्म करते हैं। अनफॉर्चुनेटली 12th एक्टिविटी इज अदर एक्टिविटीज, जिसके अंदर और कई एक्टिविटीज आ सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, कि फिनिश गुड्स को आप किस तरीके से पिक करके अपने वेयर हाउस में ला रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। इसको इनबाउंड लॉजिस्टिक्स भी कहते हैं। तो जब आपके पास वो आ गया तो आप उसको प्रॉपर स्लॉट्स पे, स्लॉट कहते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट रखा जाता है, वहाँ पे आप स्टोर करें। और स्टोरेज में आपको देखना पड़ता है कि किस आइटम को आप किस स्लॉट में रखें। अगर कोई स्मॉल आइटम्स हैं या फास्ट मूविंग आइटम्स हैं तो उसको आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के करीब रखते हैं ताकि उसको मूव करना आसान हो जाए। तो ये भी स्टोरेज की कोई डिटेल्स है। फिर तीसरी चीज़ है इंडस्ट्रियल पैकेजिंग। कोई भी प्रोडक्ट आम तौर पे एक पैकेज में सेल नहीं होता, बल्कि डिफरेंट पैकेजेस में सेल होता है। और जैसे मिसाल के तौर पे लुब्रिकेंट्स आपको 1 लीटर में भी मिल जाएगा, 4 लीटर में भी मिल जाएगा, 20 लीटर में भी मिल जाएगा और 208 लीटर्स का पेल भी मिल जाएगा, जो बड़े ब्लू रंग के
जो पेल्स होते हैं उसमें 208 लीटर्स आता है। तो ये इंडस्ट्रियल पैकेजिंग है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट कंज्यूमर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके हिसाब से इसे पैकेज करते हैं। आइसक्रीम जो है वो आप एक आइसक्रीम भी खरीदते हैं, और उसके बाद आप लीटर्स में भी आइसक्रीम खरीदते हैं, और आप 2 लीटर में भी आ रहा है। तो ये सब डिफरेंट पैकेजिंग है जिसके अंदर आप चीज़ें परचेज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड कन्वीनियंस। फिर एक और एरिया होता है दैट इज कॉल्ड मटेरियल्स हैंडलिंग, क्योंकि आपके पास इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आ रहा है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को आपने प्रॉपर्ली अपने पूरे इसके अंदर स्टोर करना है, उसको फोर्क लिफ्ट के ज़रिए से अपनी अपनी जगहों पे लेके जाना है, और वो हैंडलिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपके आइटम्स जो हैं वो ब्रेक ना हो या वेस्ट ना हो। फिर आप हर आइटम को उसके उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टोर करें ताकि वो उसकी लाइफ ख़राब ना हो। बाज़ आइटम्स ऐसे होते हैं जो शेल्फ में रखे रखे अपनी लाइफ पूरी कर लेते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। जैसे ओरिंग्स हैं, ओरिंग्स जो है अगर आप उसको बहुत अरसे तक स्टोर में रखें, 1 साल से ज़्यादा स्टोर में रखें, तो उनमें ब्रिटलनेस आ जाती है, वो क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्रैक्स पड़ जाते हैं तो अब आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। ओरिंग्स को स्टोरेज के इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप इस तरह से स्टोर करें। आप जो रबर है उनको, रबर के जो बेल्ट्स होते हैं, जो आपने देखा होगा बेल्ट्स यूज़ होते हैं पंप्स के साथ, मोटर और पंप को कनेक्ट करने के लिए, तो वो बेल्ट्स भी प्रॉपर तरीके से स्टोर स्टोर करने चाहिए, वरना वो भी शेल्फ में रहते हुए अपनी लाइफ पूरी कर जाते हैं। बाज़ मटेरियल में ज़ंग लग जाता है, तो बाज़ आइटम्स तो बहुत नाजुक होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने सिगार परचेज़ किए हैं और सिगार परचेज़ करके आप उनको वैसे ही रख देंगे, तो सिगार्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं। देन यू कैन नॉट यूज़ दोज़ सिगार्स, यू कैन नॉट एन्जॉय दोज़ सिगार्स। इसलिए सिगार, एक्सक्यूज जी, सर, जैसे टायर शॉप होती हैं उस पे टायर्स की रैक टाइमिंग होती है, रैक लाइफ होती है जी, कि जैसे जैसे जितना टाइम वो उस पे रैक पे रहते हैं उतने उनकी जो है प्राइस के ऊपर भी फर्क पड़ता रहता है, सस्ते करते रहते हैं उस हिसाब से। राइट, क्योंकि वो शेल्फ पे रखे-रखे रबर की लाइफ पूरी होनी शुरू हो जाती है। दैट्स व्हाई फिर दे हैव टू सेल एट ए लोअर प्राइस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही एग्ज़ाम्पल। इस तरह तमाम बहुत सारे आइटम्स हैं जिनकी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है, हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो यू नीड टू हैंडल दोज़ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। सिगार्स के लिए आपको ह्यूमिडिफायर चाहिए, अगर आप ह्यूमिडिफायर में नहीं रखें तो सिगार्स वेस्ट हो जाते हैं। ओके, फिर उसके अलावा इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है कि आपने इन्वेंटरी इतना रखना है कि ओवर ऑर्डर नहीं करें, क्योंकि आपका पैसा इन्वॉल्व होता है इन्वेंटरी के अंदर। जितना ऑर्डर करेंगे उतने पैसे पे करने। अंडर ऑर्डर करेंगे तो लॉस सेल्स है, या आपने कम ऑर्डर किया, जब ऑर्डर्स आए तो आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं था आइटम, या आइटम था ही नहीं, यू लॉस्ट दोज सेल्स टू योर कॉम्पिटिटर्स। तो इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन इज ए चैलेंज। इन्वेंटरी आपने वो बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी, बहुत कम भी नहीं रखने। तो इन्वेंटरी को एक ऐसे ऑप्टिमल लेवल पे रखना है कि आप कस्टमर की डिमांड को एडिकेटली पूरी करते रहें। और आपने अगर सर्विस टारगेट सेट किया हुआ है, 95% सर्विस लेवल सेट किया हुआ है, तो आप 95% सर्विस लेवल को अचीव कर रहे हैं। 95% सर्विस लेवल से क्या मुराद है कि 95% ऑफ द टाइम जब आपके पास कस्टमर्स आएंगे तो यू विल फुलफिल देयर ऑर्डर्स। ये आपने सर्विस लेवल सेट किया। 5% टाइम ऐसा होगा कि आप कस्टमर्स के ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर सकते, विच इज़ ओके। वजह उसकी है कि अगर आप 100% फुलफिलमेंट में जाएंगे, तब आपको इन्वेंट्री में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि दैट विल नॉट बी फिजिबल। इसलिए आप इन्वेंट्री इतने रखें कि आप 95% टाइम अगर आप कस्टमर्स को फुलफिल कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, दैन इट्स ओके। ओकेजनली आप 100% भी कर रहे होंगे, ओकेजनली आप 90% भी कर रहे होंगे। तो ये सर्विस लेवल कहलाता है, और सर्विस लेवल पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में एक इशू ये भी आता है, और वो बहुत सीरियस इशू है, कि डिमांड कोई कांस्टेंट चीज़ नहीं है कि आपने देख लिया कि भाई मार्केट में आपके डेली 100 आइटम्स की डिमांड है, तो फिर तो इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत आसान है। मसला ये है कि डिमांड फ्लक्चुएट करता रहता है।
اور ڈیمانڈ جن فیکٹرز کی وجہ سے فلکچویٹ کرتا ہے وہ موسٹلی آؤٹ آف یور کنٹرول ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ مارکیٹ میں سے ایک کمپٹیٹر آؤٹ ہو گیا, آپ کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ خود بخود بڑھ جائے گی. یا یہ کہ را مٹیریل شارٹ ہو گیا, پروڈکٹ ڈیمانڈ میں ہے لیکن آپ اسے مینوفیکچر نہیں کر سکتے. یا یہ کہ سیزنلی ڈیمانڈ انکریز ہو گئی, سیزنلی ڈیمانڈ ڈکریز ہو گئی. تو انوینٹری کو بیلنس کرنا از اے کنٹینیوس پروسیس, اٹ از ناٹ اے ون ٹائم ایکسرسائز. سر اس سے جو ڈیزیز آ رہی ہیں جیسے کرونا وغیرہ, تو اس کے پہ بھی بہت افیکٹ پڑا ہے نا, کہ ڈیمانڈ کی بھائی کتنی یکدم ہماری ڈیمانڈ بڑھ گئی, پروڈکٹس کی انڈسٹریز میں لوڈ بڑھ گیا. جی بالکل, جب کورونا آیا تو بہت ساری چیزوں کی ڈیمانڈ ڈاؤن ہو گئی, کچھ دوسری چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی, وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے, ان کی پرائسز بڑھ گئی. تو یہ مارکیٹ کا فینومینا ہے. جب آپ انوینٹری کنٹرول کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو انٹیسپیٹ کرتے ہیں جو پاسبلی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. لیکن آپ کے لیے ان چیزوں کو انٹیسپیٹ کرنا کہ کورونا آ جائے گا یا ریسیشن آ جائے گا, تو بیفور ٹائم اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ان چیزوں کے لیے اسٹل یو آر ری ایکٹیو. جب یہ ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر کوئی پلان کرتے ہیں. اور جیسے آپ نے ورک فرام ہوم اور یہ ساری چیزیں شروع کر دی, تو حالانکہ اب آرگنائزیشنس کے اندر کرائسس کو باقاعدہ ایز اے ڈسپلن لیا جانے لگا ہے کہ کرائسس کے سچویشن میں وہ کیا کریں گے, یا رسک اگر وہ یکر ہوتا ہے تو اس رسک کو میٹیگیٹ کیسے کریں گے. پہلے رسک کو باقاعدہ اسٹڈی کر کے رسک میٹیگیٹنگ اسٹریٹجیز نہیں بنائی جاتی تھی. اب آرگنائزیشنز ہر طرح کے رسک کو اسٹڈی کر رہے ہیں, whether it is supply chain risk, whether it is IT risk, whether it is finance risk, اور اس کو اسٹڈی کر کے ان رسک کے مطابق اکارڈنگلی میٹیگیٹنگ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اسی طریقے سے آپ کے انوینٹری پہ بہت سارے رسک ہوتے ہیں. کوئی آئٹم آپ امپورٹ کرتے ہیں, ابھی جیسے آپ کو دیکھا شپمنٹ کا پرابلم آ گیا, یا کرونا کی وجہ سے پروڈکشن ریڈیوس ہو گئی تھی, آپ کو انوینٹری نہیں مل رہی تھی, تو یہ اس کی وجہ سے آپ کی سیلز پہ امپیکٹ آتا ہے. پھر آرڈر فلفلمنٹ. آرڈر فلفلمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کسی کسٹمر نے پرچیز آرڈر بھیجا ہے, آپ اس کو کتنا فلفل کر. تو جب کسٹمر آپ کو پرچیز آرڈر بھیجتا ہے تو کوئی ایک آئٹم کا پرچیز آرڈر نہیں بھیجتا, بلکہ آپ کے 10-20 آئٹمس کا پرچیز آرڈر, ڈفرینٹ کوانٹٹی میں پرچیز آرڈر بھیجتا ہے. اور زیادہ تر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے آرڈر کو پارشلی فلفل کرتے ہیں. یعنی کچھ آئٹمز ہیں, کچھ آئٹمز نہیں ہیں. جو آئٹمز ہیں وہ تو آپ سپلائی کر دیتے ہیں, جو آئٹمز نہیں ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ویٹ کرو, اور وہ اگر کہتا ہے ٹھیک ہے میں ویٹ کر لیتا ہوں, تو آپ اس کو پھر بیک آرڈر جو ہے پروڈیوس ہو جاتا ہے تو آپ اسے سپلائی کر دیتے ہیں. اسے بیک آرڈر کہتے ہیں. یا کسٹمر ریفیوز کر سکتا ہے کہ بھائی مجھے تو ابھی چاہیے, اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں کسی کمپٹیٹر سے لے لیتا ہوں, لاسٹ آرڈر ہو گیا. پھر غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں آرڈر فلفلمنٹ میں, غلط کوانٹٹی سپلائی کر دی, غلط بل ریز کر دیا, یہ سب ایشوز آتے ہیں. تو آرڈر فلفلمنٹ. پھر اگر پارشل آرڈر کیا ہے تو اب آپ نے صحیح طریقے سے اس کو ریکارڈ نہیں کیا, تو دوبارہ جب پرچیز آرڈر آیا تو پتہ چلا آپ نے دیکھا تو آپ نے سارے آئٹمس پھر بھیج دیے ان کو. تو اس کبھی کبھی زیادہ کوانٹٹی بھیج دیتے ہیں, کبھی کم کوانٹٹی بھیج دیتے ہیں, کبھی غلط کوانٹٹی بھیج دیتے ہیں, غلط آئٹم بھیج دیتے ہیں. یہ ہے آرڈر فلفلمنٹ کے ایشوز. تو مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. سر جی سر ایک یس کوشچن تھا آپ سے. جی سر ریسنٹلی جو نا ایک پرابلم فیس کر رہے تھے ہمارے جو سمجھ لیں آپ کے آفیسر تھا, وہ پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کا اور سپلائی چین کے لحاظ سے جو نا لاجسٹک کے لحاظ سے ہماری بانڈ کی پروڈکشن ہوتی ہے سر. ٹھیک ہے, تو جو ہمارے پاس اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ ہے 20,000 بیگس کی, اور وہ ہم پیلیٹائزیشن کر کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں ہوں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں, تو میرے اوپر لوڈ آیا تھا کہ آپ کو پروڈکشن جو ہے وہ پر ڈے 5,000 جو ہے نا آپ کو پروڈکشن دینی ہے. آپ دن رات ایک کرو, جو بھی کرو, واٹ ایور. تو خیر میں تو اپنی پروڈکشن کنٹینیو رکھا ہوا تھا, بٹ ان کا اسٹوریج ایریا جو ہے وہ بڑھ گیا تھا. بالکل اسٹوریج ایریا میں جگہ ہی نہیں تھی.
اور پھر سیکنڈ اسٹوریج ایریا آپ کو پتہ ہے کہ مینیج کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو اب میں نے وجہ جب پوچھی, میں نے اپنی اینڈ سے انویسٹیگیشن کی کہ وجہ کیا ہے, تو مجھے اس آفیسر نے بتایا یار نبیل پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہمارا جو کسٹمر ہے وہ ڈیلی 7,000 بیگس کی جو ہے نا آرڈر دے دیتا ہے, لیکن کہتا ہے کہ مجھے 500 پر ڈے کے حساب سے چاہیے. ٹھیک ہے, لیٹ آپ سپوز اسٹور کرتے ہیں اپنے پاس. جی 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 جی, اب لیٹ جی سپوز جی سر اس تو نے یہ 2 ڈیز کے اندر جو ہے نا وہ 14,000 کا جو ہے نا بولا کہ مجھے مٹیریل چاہیے, 14,000 بیگس چاہیے, لیکن وہ بول رہا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ مجھے 500 چاہیے. اب جب باس کے پاس, میرے باس کے پاس جب وہ جاتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس جو ہے نا ساری کمیٹڈ ہو گئی ہیں 20,000 بیگ یا 14,000 بیگ, آپ کے پاس جو ہے نا کچھ بھی نہیں, میں سر کو بولتا ہوں سر ہمارا ایریا تو فل ہے, اسٹوریج ایریا فل ہے. پھر میں ان کے پاس جاتا ہوں, فنیشنگ گڈس کے پرسنل کے پاس جاتا ہوں, ان سے پوچھنا تو کہتے ہیں یار ہمارے پاس تو جو ہے وہ فزیکل اتنا ہے اور باؤنڈ ہو گیا ہمارا اتنا. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں اس صورت میں کیا کرتا؟ دیکھیے یہ جو ہے نا یہ کہلاتا ہے مارک ڈاؤن آئٹمس. آپ کے اسٹور میں ہے جی جی لیکن آپ نے کسی کسٹمر کے لیے اس کو مارک کر دیا ہے, تو جو ٹھیک ہے لاجسٹکس والے ہوتے ہیں نا وہ ان آئٹمس کو پھر کسی اور کو سیل نہیں کرتے, ٹھیک ہے کیونکہ وہ کسٹمر سے کمیٹیڈ آئٹمز ہیں. اگر وہ آئٹمز آپ نے اس کو سپلائی نہیں کیا, یہ بھی ہو سکتا ہے کسٹمر اگلے دن کہے مجھے سارے آئٹم بھیج دو یا آدھے جی بھیج دو, اور وہ آئٹمس نہیں ہوئے تو بیسیکلی آپ اتنے بڑے کسٹمر کے پاس بلیک لسٹ ہو جائیں گے یا پینلٹی کلاس فیس کریں گے. اس لیے لاجسٹکس والوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جن آئٹمس کو مارک ڈاؤن کر دیتے ہیں کسی کسٹمر کے لیے, وہ اسٹور میں پڑا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ کسی کو بیچتے نہیں, اور وہ پروڈکشن سے کہتے ہیں اور آئٹم پروڈیوس کریں, اینڈ دیٹ از ٹو سیو دیئر نیکس ایکچولی. تو یہ آپ کا چیف ایگزیکٹ, اور وہ ظاہر ہے اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. مطلب جب کسی نے کسٹمر نے کمٹ کر لیا ہے, پرچیز آرڈر دے دیا ہے, آپ کو پیسے دے رہا ہے, دین آپ کو اس کے لیے اسٹور کرنا ہے, اور آپ نے جو اس کے لیے جو کیپیسٹی کمٹ کر لی ہے یا جو کوانٹٹی کمٹ کر لی ہے وہ آپ نے جی اپنے جی اسٹوریج میں رکھنا ہے. اوکے رائٹ, آئی ہوپ آئی آنسرڈ یور کوسچن یا نہیں ٹھیک ہے سر, میں نبیل؟ سمجھ گیا ہوں. میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے سیکنڈ کسٹمر کو آپ ٹیگ نہ کریں, آپ اپنے کسی دوسرے کسٹمر کو دے دیں, 500 کی سیکنڈ ہینڈ ڈیمانڈ کر رہے تو آپ اس کو دے دیں, نو ایشو, ایسا نہیں کر بشرطے کہ سکتے؟ پروڈکشن کمٹ کرے کہ وہ ایک دن میں اس کوانٹٹی کو ریفل کر دے. ٹھیک ٹھیک سر, سمجھ ٹھیک گیا. ہے, اور پروڈکشن چونکہ کمٹ نہیں کرتا, پروڈکشن چونکہ خود اوور برڈنڈ ہوتا ہے, تو اس لیے وہ ایسے کمٹمنٹ نہیں کرتے, تو وہ اپنی نیک بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اب آئٹم نہیں آل ہے. رائٹ اور سر, اگر ان فیوچر میں یہ پرابلم فیس کروں تو میں یہ کر سکتا ہوں, رائٹ؟ آپ ان سے کہیے ٹھیک ہے, آئی پروڈیوس ان 2 days 3 days, اوکے تو ان دا مین ٹائم آپ یہ آئٹمس دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے اوکے پھر اوکے پیچھے سر, سے تھینک آپ یو. کے را مٹیریل کا بھی ایشو ہوتا ہے, ویدر را جی جی مٹیریل ول بی پرووائڈیڈ اور ناٹ. یہ پورا ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے, اس کے اندر سب ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے. سر ٹھیک ہاں, ہے, میں اس کے اوپر جو ہے نا بہت کیوس کریٹڈ ہو گیا تھا, باس کا بڑا پریشر تھا, را مٹیریل کی انوینٹری بھی دیکھنا ہے, بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑی, میں بہت پریشان ہو گیا تھا. بٹ آخر ان دی اینڈ جو ہے نا یہ پرابلم مجھے سمجھ آئی کہ ہے کیا مسئلہ. آپ کو تو غصہ ابھی بھی آیا ہوگا کہ آئٹم سر اسٹور میں رکھا ہوا ہے مت پوچھے سر. اور مجھے پریشرائز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل بغیر ایسے ہی تھا. لاجسٹکس والے ایسے ہی کرتے ہیں, اور ان کی لاجک یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ چونکہ مارکڈ ہے آلریڈی کسی کسٹمر کے لیے, ہاؤ وی کین سیل دس ٹو ادر کسٹمر. ٹھیک ہے, یہ ان کی لاجک ہوتی ہے, اور اس لاجک کے آگے چیف ایگزیکٹو مجبور ہو جاتا ہے. الٹیمیٹلی پریشر پروڈکشن پہ آتا ہے, دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اوکے, تھینک یو. سمجھ تو گیا, آفٹر نماز انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں. ٹھیک ہے سر, اوکے.
अस्सलाम वालेकुम and welcome back. वालेकुम अस्सलाम सर. Okay, Janab. So we are on this. Basically, ऑर्डर फुलफिलमेंट पे हमने बात कर ली. देन उससे ज़्यादा चैलेंजिंग एरिया है डिमांड फोरकास्टिंग. और डिमांड फोरकास्टिंग के लिए डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो सारे के सारे एस्टिमेशन है, क्योंकि डिमांड फ्यूचर बेस्ड है. और फ्यूचर में बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे भी आ सकते हैं जो आपके मॉडल में इनकॉर्पोरेटेड ना हो, या उस तरह से इनकॉर्पोरेटेड ना हो जिस तरह से फ्यूचर में वो वेरिएबल्स बिहेव करें. ठीक है. कॉमन एग्जांपल्स आर के आपके प्रोडक्ट की डिमांड अचानक बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है मार्केट में, कोई सब्स्टिट्यूट हो जाता है, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है. तो इन सब चीज़ों की वजह से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड पे पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है. तो डिमांड फोरकास्टिंग एक चैलेंजिंग एरिया है. आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं, जिसमें सेल्फ लर्निंग होती है, और वो जो चीज़ें हो रही होती हैं उसको लर्न करके सॉफ्टवेयर अपने आप को इम्प्रूव कर रहा होता है, आगे की फोरकास्टिंग ज़्यादा बेहतर कर रहा होता है. बट स्टिल फोरकास्टिंग इज़ ए चैलेंज. और ख़ास तौर पे जब आप ग्लोबली मार्केट को हैंडल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है. लेकिन उसके अंदर एक अच्छी बात ये होती है कि आप जो डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं उसमें क्या है, बहुत सारी जगहों पे एरर्स भी बैलेंस हो जाते हैं. कि किसी कंट्री में आपने डिमांड को ज़्यादा फोरकास्ट कर लिया, किसी कंट्री में आपने डिमांड को कम फोरकास्ट कर लिया, तो देयर इज़ ए चांस कि आपकी डिमांड फोरकास्टिंग ऑन एवरेज ठीक हो जाए. डिमांड फोरकास्टिंग में जो है वो एक्सट्रापोलेशन का मेथड है. मेरे ख्याल में अभी हम आके डिस्कस करेंगे इसको. तो डिमांड फॉर एक्सट्रापोलेशन का मेथड है, और दूसरे मेथड से जिसके ज़रिए से आप डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं. बाज़ औक़ात ज़ीरो बेस्ड डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, बाज़ औक़ात आप वेटेड एवरेज डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, और बाज़ औक़ात आप हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं. अच्छा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ये एक जो आप भी कौन सा आप जिक्र कर रहे थे, नबील वाज सेइंग दैट. जी सर. जी, कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. और एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है सप्लाई चेन के अंदर, उसको कहते हैं प्रोडक्शन नर्वसनेस. प्रोडक्शन नर्वसनेस का मतलब ये होता है कि जब आप बार बार शेड्यूलिंग और रीशेड्यूलिंग कर रहे होते हैं, तो आप तो कागज़ के ऊपर बड़े आराम से प्रोडक्ट के नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रोडक्शन प्लांट और लोग इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते कि आप जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं, और उस हिसाब से प्रोडक्शन प्लांट भी अपने आप को रीओरिएंट. अगरचे आजकल प्रोडक्शन प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल दोज आर मशीन्स, तो उनको चेंज ओवर में टाइम लगता है, और फिर लोगों का माइंडसेट चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है कि अब हम ये नहीं बना रहे, ये बना रहे. रॉ मटेरियल बार बार आप अगर इस तरह करेंगे तो रॉ मटेरियल की भी गलती हो सकती है. पता चला आपने बिल्कुल सर, क्वालिटी इम्पैक्ट आता है इस पे. ये क्वालिटी इम्पैक्ट आता है. लाइफ बॉय को लक्स के रैपर में पैक कर दिया आपने. तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं जब आप बार बार प्रोडक्शन प्लानिंग चेंज करते हैं. ये प्रोडक्शन वालों को बहुत बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये इस वजह से होता है कि बाज़ औक़ात कोई कस्टमर बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर कर देता है. कोई इम्पॉर्टेंट कस्टमर है, वो ऑर्डर कर देता है, वो आपको प्रेस कर रहा होता है कि भाई ये आइटम मुझे जल्दी चाहिए. तो ऐसी सूरत में आपको प्रोडक्शन को शेड्यूलिंग रीशेड्यूलिंग करनी पड़ती है. तो कभी भी प्रोडक्शन शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन. हमेशा उनके शेड्यूल्स चेंज होते रहते हैं. हालांकि वो प्लानिंग भी करते हैं, शेड्यूलिंग भी करते हैं, रॉ मटेरियल भी उसी तरह से परचेज करते हैं. बट इवन देन देयर आर emergencies, even then there are back orders, even then there are pressure from customers, and you need to fulfill your commitments. As a result, इनकी scheduling itself is a challenging area. प्रोडक्शन सप्लाई चेन का प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ये बहुत चैलेंजिंग एरियाज हैं सप्लाई चेन के. फिर जी प्रोक्योरमेंट. सर, बिल्कुल सही कहा आपने. प्रोक्योरमेंट वाले से आए दिन हमारी जो ना बात खराब हो रही होती है. जी बिल्कुल, क्योंकि वो आपको रॉ मटेरियल नहीं देते, आप हाँ नाराज सर, हो जाते हैं. वो कहते रॉ हैं कि मटेरियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं देते. वो कहते हैं आप अचानक सर पे आके खड़े हो जाएंगे, अब रॉ मटेरियल हमें 10 टन नहीं चाहिए, 12 टन चाहिए, तो अचानक प्रोक्योरमेंट वाले बहुत ढीले होते हैं सर. ऐसा लगता है.
बहुत बट डीले होते हैं। ऐसा एक्चुअली लगता है, जैसे अस्पताल में जाते हैं ना, बाज़ वक़्त आप खुदा न खास्ता बीमार हो, तो नर्स मुस्कुरा रही हो या डॉक्टर कैजुअली बात कर रहे हो तो आपको गुस्सा आता है। हालाँकि वो अब इतना ज़्यादा उस काम में करते-करते उसके आदी हो चुके होते हैं कि उनको पता है मरीज़ की क्या कंडीशन है, क्या दवाई दे रहे हैं, कितना टाइम लगेगा उसको सही होने में। सर उसकी वजह ये है कि अपर मैनेजमेंट जो है ना बुखार प्रोडक्शन इंजीनियर के ऊपर ही उतार रही होती है। जी, दैट इज़ द इश्यू, दैट इज़ द इश्यू। अदरवाइज़ प्रोक्योरमेंट भी जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन ये है कि वो अपना चूँकि उनका रूटीन का उनके रोज़ का काम है, तो ऐसा लगता है कि आपके रिक्वेस्ट को वो रूटीनली ले रहे हैं। बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं। यस ज़ुहैर। सर ये इशू नबील ने रेस किया है, इसके अंदर यूजुअली जो मसला होता है ना वो ये होता है कि हर डिपार्टमेंट अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है। जी। अगर ये सारे डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक होके एक दूसरे को हेल्प आउट करके करेंगे तो ये इशू रिजॉल्व हो सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि जी। इनको पता होता है कि इनका प्रोडक्ट जो भी मशीन प्रोड्यूस कर रही है वो कितनी क्वांटिटी के अंदर 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर कितने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है। तो उसके हिसाब से ही ये लोग इसको मैनेज कर सकते हैं कि हाँ, हम कोई भी एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट आती है, उसको हम 1 दिन में, 2 दिन में, कितने दिन के अंदर हम कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो हैंडल हो सकता है। लेकिन मसला वही है कि कोई भी उस डिपार्टमेंट उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। मिसकम्युनिकेशन बहुत होती है ज़हीर भाई, इसमें बहुत मिसकम्युनिकेशन होती है। देखिए, लेट्स ये सपोज कभी महीने में 1 दफ़ा हो ना, तो प्रोडक्शन वाले ठीक है शेड्यूल चेंज करके कर दें। लेकिन अगर ये डेली बेसिस पे हो तो दैट इज़ एन इश्यू। उसकी वजह से ऑब्वियसली प्रोडक्शन मैनेजर से उसके वर्कर्स नाराज़ हो जाते हैं, सुपरवाइजर्स नाराज़ हो जाते हैं। एक मैनेजमेंट का इश्यू क्रिएट हो जाता है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अब ऑर्गेनाइजेशंस ने ये किया है कि वो कलेक्टिव बोनस देते हैं। पूरे ऑर्गेनाइजेशन इतना रेवेन्यू का टारगेट अचीव करेगी तो हम ये बोनस देंगे। पूरा ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन का ये टारगेट अचीव करेगी तो हम ये बोनस देंगे। तो वो केपीआईज को इस तरह से डेवलप करते हैं कि वो फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कि यू नीड टू अचीव। जापान में तो ऐसा ही होता है, वहाँ पे तो टीम वर्क है, कलेक्टिव वर्क है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जब अचीव करती है देन दे सेलिब्रेट इट एंड दे रिवॉर्ड इट। तो जी, इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अब इसको कर रही हैं कि कलेक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम कर रही हैं। लेकिन सर मैंने भी इसका सोल्यूशन निकाल लिया, मैंने डायरेक्ट उसके सप्लायर का कांटेक्ट निकाल लिया और अच्छा, उससे डायरेक्ट पूछ लेता हूँ कि भाई कब पहुँचाओगे, मुझे किस तरीके का मटेरियल चाहिए। चले ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। इस तरह आप हाँ एक्सपेडाइट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, एज लॉन्ग एज प्रोक्योरमेंट आपसे नाराज़ नहीं होता है। नहीं, प्रोक्योरमेंट को भी मैंने बता दिया अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ढीलापन दिखा रहे हो तो फिर मैं खुद ही कर लेता हूँ। उन्होंने बोला आप कर सकते हैं तो कर लें। उन्होंने हल्का लिया और फिर मैंने कांटेक्ट निकाल के उनके सामने पेश कर दिया। तो खैर वो उन्होंने फिर सर मुझ पर ही छोड़ दिया था। मैं आपको हकीकत बात बताऊं, लास्ट में उन्होंने मुझ पर ही छोड़ दिया था कि नबील देख रहा है, नबील देख रहा है, नबील देख लेगा। फिर मैं पीछे हट गया, मैंने बोला ये तो मेरे ऊपर एक बर्डन आ जाएगा। फिर सर मैंने ये कल्चरल इशू है हमारा। ये जो बिल्कुल नबील ने जो ये प्रोएक्टिव अप्रोच के थ्रू किया है ना, ये हमारा कल्चरल इशू है। अच्छा तो ये देख रहा है ना, अब यही देखता रहेगा लास्ट तक। बिल्कुल वो वो अपने तो ऊपर है से ना। उन्होंने जिम्मेदारी हटा दी कि नबील ने देख लिया है। अब मैंने बोला भाई मटेरियल सही नहीं है। अब मैं हम्म, सप्लायर को ये बोलूंगा कि भाई तुम मटेरियल सही नहीं दे रहे, तो बोलने कि आप उनसे बात करें प्रोक्योरमेंट वालों से। अब मैं परेशान में फंस गया, मैंने बोला नहीं भाई अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। जी जी। तो इसलिए ठीक है कि आप प्रोएक्टिवली कर ले करते हैं, लेकिन वो चीज़ें थ्रू प्रोसेस ही हो तो अच्छा है, वरना आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो आप इसका आंसर नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, सर, अगर इसलिए मैं पीछे ही हट गया, मैं उसका फोन ही रिसीव नहीं कर रहा। मैंने बोला भाई मटेरियल मुझे प्रोक्योरमेंट वालों से डायरेक्ट बात करूँ, मुझे मटेरियल चाहिए, नहीं होती मैं प्रोडक्शन रुक दूंगा, अपने मैनेजर को बता दूंगा ये इशू है। हाँ, सही है, ठीक हम्म, है। लेकिन यही अगर आपके अगर बोनसेस कंबाइंड कर दिए जाए ना, फिर आप हम्म, दोनों मिलके काम कर लें। अब बोनसेस मटेरियल वैल्यू के, जैसे मिसाल के तौर पर साल में 6 बोनस मिलते हो, तो जी फिर उसके लिए सब मिलके काम करेंगे। ये एक तरीका है। ओके अच्छा ओके। जनाब, फिर है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि कस्टमर सर्विस के 2 मतलब होते हैं। एक कस्टमर सर्विस का ये मतलब होता है कि कस्टमर आता है, आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, ग्रीट करते हैं, ट्रीट करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में करते हैं। ये कस्टमर सर्विस है, ये भी कस्टमर सर्विस है, ठीक है।
और एक कस्टमर सर्विस होती है जो सप्लाई चेन में जो कस्टमर सर्विस का मतलब होता है वो ये मतलब होता है कि आप कितने परसेंट कस्टमर्स को टाइमली प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। 90% ऑफ द कस्टमर को, 95% ऑफ द कस्टमर को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने परसेंट कस्टमर प्रोवाइड कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो पूरे साल के लिए आप एक टारगेट सेट करते हैं कि हम 95% कस्टमर सर्विस करेंगे। इसका मतलब है आपका डिज़ाइन ही इस तरीके से है कि 5% कस्टमर्स को आप रिफ्यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप 100% कस्टमर्स को सर्व करेंगे देन यू नीड मोर इन्वेंट्री, मोर प्रोडक्शन फैसिलिटी, मोर पीपल, मोर वेयर हाउसिंग एंड दैट विल बी एक्सपेंसिव। इसलिए आप कस्टमर सर्विस का एक लेवल डिफाइन करते हैं और फिर कस्टमर सर्विस में भी फिर आप ग्रेडिंग करते हैं। जो आपके ए लेवल के कस्टमर्स हैं उनको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्व करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी 100% रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाए, डायरेक्ट आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। जो बी लेवल के कस्टमर्स हैं उनको आप कोशिश करते हैं कि थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, डिस्ट्रीब्यूटर्स टेक केयर ऑफ देम। और जो सी लेवल के कस्टमर्स हैं वो आप रिटेलर पे छोड़ देते हैं कि रिटेलर से जाकर के परचेज कर लें, तो रिटेलर्स टेक केयर ऑफ देम। एंड ये इस वजह से होता है कि ज़ाहिर है सी लेवल के कस्टमर्स के वॉल्यूम बहुत छोटे होते हैं। बाद अक्सर औकात ये होता है कि सी लेवल कस्टमर्स प्राइस भी ज़्यादा पे कर रहे होते हैं और उनको खुद जा कर के आइटम पिक करना होता है। बी लेवल के कस्टमर्स मॉडरेट प्राइस पे कर रहे होते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन भी उसके अंदर ऐड होता है, और ए लेवल के कस्टमर जो है वो प्राइस भी कम पे कर रहे होते हैं क्योंकि वो क्वांटिटी में परचेज कर रहे होते हैं और सर्विसेज भी ज़्यादा अवेलेबल कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का फोकस भी उन्हीं के ऊपर होता है क्योंकि 80% ऑफ द कस्टमर्स से आपके 20% ऑफ द कस्टमर्स आपको 80% ऑफ द प्रॉफिट देंगे। इसलिए ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो 20% ऑफ द कस्टमर पे फोकस करते हैं, बाकी 50% कस्टमर्स वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते थे और 30% ऑफ द कस्टमर्स रिटेल के लिए छोड़ देते हैं, तो रिटेल उनको हैंडल कर लेगा। तो दिस वे दिस बिकम्स एन एफिशिएंट सप्लाई चेन, और ये खुद ही वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो जाता है अगर आप डिज़ाइन ना भी करें तो। लेकिन उसको डिज़ाइन करके चलें तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है कि आपका प्लांट की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, वेयर हाउस की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट आप वहाँ पे लोकेट करेंगे जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, यूटिलिटीज़ अवेलेबल हो, टेक्निकल लोग अवेलेबल हों जो प्लांट को चला सकें, सप्लायर्स अवेलेबल हों, तो प्लांट तो आप उस जगह पे लोकेट करते हैं। वेयर हाउस उस जगह पे लोकेट करते हैं जहाँ पे कस्टमर्स होते हैं। आम तौर पे कस्टमर्स कहीं और होते हैं और प्लांट की लोकेशन के लिए आइडियल लोकेशन कहीं और। फिर आपको डिफरेंट एरियाज़ में वेयर हाउसेस बनाने पड़ते हैं ताकि आप प्लांट से उन वेयर हाउसेस की फिलिंग कर सकें। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक प्लांट से आप पूरा पाकिस्तान को नहीं फीड कर सकते, देन यू नीड टू प्लेस 2 प्लांट्स। एक प्लांट आप साउथ में लगाते हैं, एक प्लांट आप नॉर्थ में लगाते हैं। फिर अकॉर्डिंगली आप वेयर हाउस को रिप्लेनिश करते हैं, सबकी कॉस्ट होती है। सो यू नीड टू सी कि कब प्लांट लगाना कहाँ पे फीसिबल है। अभी की तक टोयोटा ने कराची में प्लांट लगाया है लेकिन लाहौर में जाके प्लांट नहीं लगाया। लेकिन मे भी अगर उनकी डिमांड बढ़ती है, अफगानिस्तान वगैरह में उनकी डिमांड बढ़ती है गाड़ियों की, हो सकता है कि वो जा कर के एक प्लांट इस्लामाबाद या पेशावर में लगा दे, तो वहाँ से वो फिर लाहौर के कस्टमर्स को भी फीड करें और उधर अफगानिस्तान के भी कस्टमर्स को फीड करें। ये डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से डेवलप होती है। अगले इसके साथ ही दूसरे प्लांट या तीसरे प्लांट का फैसला होता है, उसके साथ ही वेयर हाउसेस का भी अकॉर्डिंगली फैसला होता है। ज़ाहिर है कि आप जो वेयर हाउस लगाते हैं, जो प्लांट लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि वो प्रॉफिटेबल हो। अदर्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि आपसे कोई साहब अगर डीजल जनरेटर ख़रीदते हैं तो इस उम्मीद पे ख़रीदते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसके स्पेयर पार्ट्स भी प्रोवाइड करेंगे, आप उसकी मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, आप उसके इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी सर्विसेज आपकी सप्लाई चेन के लॉजिस्टिक्स का हिस्सा होती है। लॉजिस्टिक्स में ये चीज़ें शामिल हैं। फिर इसी तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकल आता है तो कस्टमर उसे रिटर्न भी करता है। तो रिटर्न गुड्स को आप कैसे हैंडल करते हैं? जैसे मेरा सिट्रस फ्रूट जूसर ख़राब हो गया तो वारंटी पीरियड में था, मैंने शॉप में जा कर के दिया तो दे टूक एटलीस्ट आई थिंक 25 डेज़, मगर वो फिर रिपेयर होकर के आ गया। तो रिटर्न्स गुड हैंडलिंग कैसे करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है।
फिर बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत अच्छी होती हैं, बहुत प्रॉम्प्ट होती हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है हमारी, वो थोड़ी सी ऑटोमेटेड किस्म की है, लेकिन उसके जब भी हम फ़ोन करते हैं फ़ौरन उसके लोग यहाँ पे आ जाते हैं और फ़ौरन उसको अच्छी कॉस्ट, अच्छे रीज़नेबल प्राइस के ऊपर उसको रिपेयर कर देते हैं। इसी फिर तरीके से सर ये सैमसंग का भी जब फॉल्ट आया था तो हाँ, सैमसंग कंपनी ने है ना सारे मोबाइल इतने दुनिया में थे तो उन्होंने वापसी मंगवा लिए थे, इतने अच्छा, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे। जी सर। तो इससे लिए ताकि उनका उससे अच्छा इमेज बना होगा, और फिर उन्होंने उनकी सेल्स में इससे फ्यूचर में अच्छा इम्पैक्ट हुआ होगा। वन टाइम उन्होंने हिट ले लिया, लेकिन कस्टमर सर्विस अच्छी प्रोवाइड करके उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए। मगर मैं पाकिस्तान में सैमसंग के सर्विसेज से आई वाज डिसअपॉइंटेड, तो अब मैं जो हूँ ना सैमसंग खरीदना मैंने बंद कर दिया है कि सैमसंग इज़ अ बैड बैड। अब मैं भी वो कोरोना का टाइम था, वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर सके। अब फिर उसमें सबसे बड़ा जो वो लतीफ़ा ये हुआ कि एंड में इतने सारे टू एंड फ्रो मोशन के बाद उन्होंने कहा कि जनाब आपका मदरबोर्ड ख़राब है। अब मदरबोर्ड हमारी गारंटी में नहीं आता, और मदरबोर्ड जो है वो 26,000 का है। 30,000 का मोबाइल है, मदरबोर्ड 26,000 का है, आप 4,000 पे वारंटी दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा हमारी जो दूसरे वर्जन्स हैं उसके अंदर ये मदरबोर्ड भी वारंटी में। तो मैंने कहा ये बेचने के बाद बताया करो ना, अब बताने का क्या फ़ायदा है। बहरहाल, तो फिर सैल्वेज और स्क्रैप डिस्पोजल, ये भी अब मैन्युफैक्चरर की ज़िम्मेदारी हो गई है। ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में यूरोप और अमेरिका में स्क्रैप के डिस्पोजल मैन्युफैक्चरर की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं या कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो इसलिए उनको वापस कलेक्ट करके डिस्पोज ऑफ करना प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मोबाइल भी है और लैपटॉप भी है और उसके अंदर टेलीविज़न वगैरह भी शामिल है, और उसको फिर अब उसका पूरा सिस्टम बना लिया उन ऑर्गेनाइजेशंस ने। टेलीविज़न आपने का ख़राब हो गया, आप फेडेक्स को दे दें, फेडेक्स जा करके रेलेवेंट जो मैन्युफैक्चरर है उसको दे देगा। अब उन्होंने बाकायदा उसका सिस्टम बना लिया है कि उसमें से जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो निकाल लेते हैं, कोई और भी कंपोनेंट है तो वो भी उसमें से निकाल लेते हैं, और बाकी फिर उसको प्रॉपर तरीके से लैंडफिल में बरी करते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के रूल्स के मुताबिक है। तो ये भी अब ये जो रिवर्स सप्लाई चेन है, इसको भी आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। पहले रिवर्स सप्लाई चेन पे इतनी तवज्जो नहीं थी, लेकिन अदर्स में ये रिवर्स सप्लाई चेन मेन पार्ट है, और कंटिन्यूस सपोर्ट अदर पार्ट है। और कंटिन्यूस सपोर्ट में ये भी शामिल है कि आपका एक मॉडल ऑब्सोलीट भी हो जाए तो आप उसके स्पेयर पार्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते रहें एज लॉन्ग एज इट इज़ इन द यूसेज ऑफ योर कस्टमर्स। मैंने एक HP का प्रिंटर ख़रीदा, फिर ख़रीदने गया तो उसने बहुत कम कीमत में दे दिया। मैंने कहा HP का प्रिंटर है, ले लेता हूँ। उसके 3 महीने बाद ही मेरे कंप्यूटर पे मैसेज आने लगा कि जो टेक्निकल सपोर्ट है वो इस प्रिंटर से अब हमने विथड्रॉ कर दिया। तो ये इश्यूज़ आते हैं। तो इसको अब मैक्रो और माइक्रो पर्सपेक्टिव के लिहाज से डिस्कस किया उन्होंने। बिजनेस की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को आप देखिए। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का मतलब वो वेयर हाउस से लेकर के रिटेल तक जाने की जो कॉस्ट है, और फिर रिवर्स लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, दैट इज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। अच्छा, 2005 में ये 1.2 ट्रिलियन थी, और 2014 में ये 1.45 ट्रिलियन है। तो आप देखें कि जो 10 साल में ये 20% इंक्रीज हुआ है तकरीबन। ठीक है, 20% के करीब इंक्रीज हुआ। तो 20% 10 साल में इंक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह ये है कि लॉजिस्टिक्स के अंदर इसलिए कि जीडीपी इंक्रीज इससे ज़्यादा हुआ है। अगर आप जीडीपी देखें 2005 का यूएसए का क्या था और 2014 का जीडीपी देखें, तो जीडीपी के में ज़्यादा ग्रोथ हुई है, 20% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट को सप्लाई चेन के एग्जेक्टिव्स ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल भी किया, डाउन भी किया, और एफिशिएंटली मैनेज भी किया। और ये आप देखिए कि टोटल जीडीपी का अप्रोक्सीमेटली 10% है। जीडीपी का 10%। मुझे याद पड़ता है कि 2014 में
इनका 1.5 ट्रिलियन था, 15 ट्रिलियन, हाँ 15 ट्रिलियन था। तो ये उसका 10% है। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पूरे बिजनेस का एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, इट इज़ नॉट ए स्मॉल कॉस्ट। अगर आप लॉजिस्टिक्स के इंचार्ज हैं तो आप बेसिकली 10% ऑफ द बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आप अमेरिका के बिजनेस में ये 10% है, अगर पाकिस्तान के बिजनेस में देखेंगे या किसी और चाइना के बिजनेस में देखेंगे, इट मे बी 40, 50 और 60% ऑफ द कॉस्ट। रीजन है इसके पाकिस्तान में और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इसके अंदर शामिल है, और अमेरिका में आम तौर पर प्रोडक्शन वो खुद नहीं कर रहे बल्कि आउटसोर्स कर रहे हैं, उसके अंदर उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज 10%। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड हो जाए तो फिर जाहिर है कि वो बहुत बड़ी कॉस्ट हो जाएगी। तो दैट इज हैंडल्ड बाय लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे उन्होंने देव दी दिया और मैंने आपको बताया भी था कि इट इज ऑलमोस्ट 10%, कि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी इट इज ऑलमोस्ट 10%, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज ड्रॉपिंग। और ड्रॉप इसलिए कर रहा है कि बेसिकली इसके अंदर आप लोग काम करके एफिशिएंसी ला रहे हैं। ये सवाल है? अच्छा जनाब, मैक्रो परस्पेक्टिव में आप देखें मेजर कैटेगरीज ऑफ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, यानी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में क्या चीज़ें शामिल है। तो उसमें जो एक बहुत बड़ी कॉस्ट है दैट इज कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में जो आप इन्वेंट्री को अपने पास स्टोर करते हैं दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। उसमें तो सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, कि वेयर हाउसिंग में सॉरी टैक्सेस, ऑब्सोलेसेंस, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस, ये सबसे बड़ी कॉस्ट है। ये उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़ाहिर है जीएसटी लगता है, इनकम टैक्स लगता है, वो एक कॉस्ट है। फिर वो प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट हो जाती हैं, यानी वहाँ पे स्टोरेज में ही ख़राब हो जाती हैं या आउटडेटेड हो जाती हैं, उसका नया वर्जन आ जाता है, उस वर्जन को कोई नहीं ख़रीद रहा है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डेप्रिशिएट होती हैं, फिर उसके इंश्योरेंस की कॉस्ट होती है। तो ये 331 है, यानी 476 का समझ लीजिए आप 2/3 जो है ये कॉस्ट होगी। फिर वो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट भी लगाते हैं, जो कि हम लोग आमतौर पे यहाँ पे नहीं लगाते इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में, लेकिन वो इंटरेस्ट कॉस्ट भी लगाते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी लगाते हैं कि ये पैसा जो हमने इन्वेंट्री में स्टोर किया हुआ है, अगर इन्वेंट्री में ना रखते तो हमें कितना पैसा मिलता। तो वो 2% मिलता। 476 का $2 है, वो इंटरेस्ट है। और वेयर हाउसिंग की जो कॉस्ट है जिसके अंदर आपके फोर्क लिफ्ट्स हैं, वहाँ का सिस्टम है, यूटिलिटी बिल्स हैं, लोग हैं, इन सब की कॉस्ट $143 बिलियन बनती है, या समझ लीजिए 1/3 बनती है टोटल कैरिंग कॉस्ट की। कैरिंग कॉस्ट है और उसके अंदर नोट कीजिएगा गुड्स की कॉस्ट नहीं शामिल है, यहाँ पे कहीं पे भी गुड्स की कॉस्ट नहीं है, गुड्स की कॉस्ट अलग है। फिर लॉजिस्टिक्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, मैनेजर्स हैं, एनालिसिस है, ये सारी चीज़ें होती हैं, दैट इज़ $56। और उसके अंदर फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो असल मेजर कॉस्ट है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है $702। उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग होती है ट्रक के ऊपर, इंटरसिटी ट्रक, और ट्रक लोकल उसके बाद है $216। और फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय रेल, बाय वाटर, बाय ऑयल पाइपलाइन, बाय एयर, बाय फॉरवर्डर्स भी ज़ाहिर आपसे पैसे लेते हैं, तो ये उसकी कॉस्ट इन्होंने बता दी। वाटर को भी फर्दर ब्रेक कर दिया है कि इंटरनेशनल में करते हैं तो $31 लगते हैं, डोमेस्टिक में जो वाटर में कॉस्ट है वो $9 है, इंटरनेशनल एयर की कॉस्ट है 12, डोमेस्टिक की कॉस्ट है $16, और शिपर रिलेटेड कॉस्ट, जो शिपर के डॉक्यूमेंटेशन और ये सब की कॉस्ट होती है वो $10 है। आउट ऑफ दिस टोटल 1449 लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का ब्रेकअप है। ये ब्रेकअप आपको समझाने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं एज लॉजिस्टिक्स मैनेजर, वो पैसे कहाँ कहाँ जाते हैं। इसकी एनालिसिस शीट भी आपके पास आती है। जब आपके पास एनालिसिस शीट आती है तो आप समझ सकते हैं कि उसको आप कहाँ पे बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं।
अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई अब हम ज़रा माइक्रो लेवल पे देखते हैं कि लॉजिस्टिक्स क्या है, और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है लॉजिस्टिक्स इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब है कि दूसरे डिपार्टमेंट के साथ आप किस तरह काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर नबील ने अभी आइडेंटिफाई किया था कि दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ लॉजिस्टिक्स इंटरफेस विद अदर फंक्शनल एरियाज, जैसे प्रोक्योरमेंट है, मार्केटिंग है, ये सब इनके इंटरफेसेस हैं। और फिर कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कॉस्ट जो है लॉजिस्टिक्स की अफेक्ट करती है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इन्होंने यहाँ पे आपको बताया है कि जनाब लॉजिस्टिक्स को अगर आप देखें तो लॉजिस्टिक्स के 4 इंटरफेसेस हैं। मैन्युफैक्चरिंग के साथ उनका इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं, कहीं पे इन दोनों का ओवरलैपिंग एरिया होता है। तो लॉजिस्टिक्स का काम जो है मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी है, मार्केटिंग के साथ भी है, फाइनेंस के साथ भी है, और अकाउंटिंग के साथ भी है। ठीक है, फाइनेंस के साथ तो इसलिए है कि जो आप इन्वेंट्री रखते हैं लॉजिस्टिक्स में, जो इन्वेंट्री आप स्टोर करते हैं, फाइनेंस उसके साथ एक तो वो उसकी एनालिसिस करता रहता है, और फिर आपको बताता रहता है कि जनाब आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट जो है हमारे पैरामीटर्स से बहुत ज़्यादा हो रही है या इन लाइन विद पैरामीटर्स है। खास तौर पर जब ज़्यादा हो रही होती है तो वो ज़रूर बताते हैं और शोर भी मचाते हैं। तो और इन्वेंट्री चूँकि लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी होती है, फाइनेंस ये नहीं कह सकता कि आप इन्वेंट्री कम करें। फाइनेंस ये कह सकते हैं जनाब आप इन्वेंट्री में एफिशिएंसी लाइए, इन्वेंट्री की कॉस्ट हमारे पैरामीटर्स से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आप इन्वेंट्री कम करेंगे, लॉस सेल्स होगी, आप कहेंगे भाई फाइनेंस ने कहा था इन्वेंट्री कम करें। इंटरफेस में ये इशू होता है कि इंटरफेस के अंदर आप सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को रिपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड है। तो सबसे बड़ी कॉस्ट जाहिर है कि जिसके लिए कंसर्न होता है फाइनेंस का, वो तो इन्वेंट्री कॉस्ट। दूसरी बात ये है कि इन्वेंट्री को कभी कभी फाइनेंस वाले मॉर्गेज करके लोन भी लेते हैं। तो बाद आपकी इन्वेंट्री पर उसके बेसिस पे जब लोन लेते हैं तो फिर आप उस इन्वेंट्री को जब आप निकालते हैं तो बैंक का एक ऑफिसर आपको परमिट करता है कि जी ठीक है आप इतनी इन्वेंट्री विड्रॉ कर लीजिए। तो ये भी होता है कि इन्वेंट्री के अगेंस्ट लोन भी लेते हैं। अच्छा जनाब, फिर उसके अलावा वेयर हाउसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट ओन्ड एंड और आउटसोर्स, मतलब एक तो वेयर हाउस है आपके पास। अच्छा, वेयर हाउस का इशू क्या है? वो इशू जो अभी नबील ने हाईलाइट किया, कि वेयर हाउस की एक कैपेसिटी होती है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हो जाते हैं तो वेयर हाउस की कैपेसिटी 100% पे आ जाती है, अब मज़ीद आप वहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। जब ऑर्डर्स कम होते हैं तो वेयर हाउस अंडर कैपेसिटी चलता है। वेयर हाउस की कैपेसिटी हमेशा एक चैलेंज रहती है। तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप जो है वेयर हाउस का 70% अपने पास रखें, कि 70% ऑफ द प्रोडक्शन आपके वेयर हाउस में होगी या रेंटेड वेयर हाउस में होगी, जिसको आप लॉन्ग टर्म रेंट पे ले सकते हैं, और 30% जो आपके आइटम्स होंगे उसके लिए आप स्पॉट परचेजिंग करेंगे वेयर हाउसेस के। स्पॉट मार्केट से जब आप वेयर हाउस लेते हैं रेंट पे, परचेज नहीं, रेंट पे जब लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा प्राइस पे मिलती है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपका वेयर हाउस का जो रेंट का एग्रीमेंट है वो फर्ज कीजिए कि 10 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे, लेकिन जब आप वो आपका 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए एग्रीमेंट है, लेकिन आप स्पॉट मार्केट में जाएँ कि मुझे 3 महीने के लिए वेयर हाउस चाहिए, तो वो आपको 14 रुपीज़ 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंट पे देगा। दैट इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन आपको इसका कॉम्बिनेशन लेके चलना चाहिए, क्योंकि अगर ऑल द टाइम आप बहुत बड़ा वेयर हाउस रखेंगे तो शायद 50% ऑफ द टाइम, 60% ऑफ द टाइम आपका वेयर हाउस एम्प्टी रहेगा, फुली यूटिलाइज नहीं होगा। उससे बेहतर है कि आप एक फिक्स कैपेसिटी जो आप समझते हैं कि हर वक्त आपकी कैपेसिटी फुल रहेगी 70% 80% ऑफ टोटल, तो वो आप रखें अपने पास। वो आपका अपना भी हो सकता है और रेंटेड भी हो सकता है। और दूसरे जो बाकी आपकी रिक्वायरमेंट है 20% या 30 की, तो वो आप स्पॉट मार्केट से रेंट पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस कॉस्ट को ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट में कुछ आप अपने पास भी रखते हैं, कुछ आउटसोर्स भी करते हैं। बाज़ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं पूरे की पूरी आउटसोर्स कर देती,
بعض ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं नहीं, कुछ फ्लीट हमारे पास होना चाहिए, जो बाकी रिक्वायरमेंट है हमें मार्केट से पूरा कर सकते हैं। फिर फाइनेंस इस पे भी देखता है कि भाई कस्टमर सर्विस कैसे हो रही है। फाइनेंस कस्टमर सर्विस को क्यों देखता है? क्योंकि कस्टमर सर्विस की कॉस्ट होती है। वो ये आपके चेक रखता है कि जनाब आप कस्टमर सर्विस जो लोगों को दे रहे हैं, क्या वो कस्टमर्स इस लेवल की कस्टमर सर्विस को डिजर्व करते हैं। मिसाल के तौर पर आप इकोनॉमिक क्लास के कस्टमर को वीआईपी लाउंज में या सीआईपी लाउंज में बैठा रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो इज इट जस्टिफाइड? तो इसलिए फाइनेंस कस्टमर सर्विस को भी देखता है। फाइनेंस कस्टमर सर्विस को इस पर्सपेक्टिव से भी देखता है कि आपकी लॉस सेल्स कितनी है। लॉस सेल से मुराद ये है कि परचेज ऑर्डर आया बट यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू फुलफिल दैट परचेज ऑर्डर बिकॉज दोज आइटम्स वर नॉट इन इन्वेंट्री, दैट इज सिंपली लॉस ऑफ प्रॉफिट। फाइनेंस कैलकुलेट्स दैट कि कितना लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ, क्योंकि परचेज ऑर्डर्स की कॉपी उनके पास भी जाती है, फिर जो बिल रेज करते हैं वो भी उनके पास जाता है, वो मैच कर सकते हैं। आजकल कंप्यूटर में तो मैच करना बहुत आसान है। दे कैन टेल यू दैट एट द एंड ऑफ द मंथ कि भाई हमें इस महीने जो है 4% लॉस सेल हुआ है। 4% लॉस का मतलब हुआ $10 मिलियन प्रॉफिट का लॉस, इज ह्यूज। तो इसलिए कस्टमर सर्विस को इस पर्सपेक्टिव से देखते। अकाउंटिंग वाले किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं? ज़ाहिर है कि आपकी कॉस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है उसकी एनालिसिस करते हैं, फाइनेंस को फीड करते हैं, डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स को फीड करते हैं। फिर आप सप्लाई चेन में जो ट्रेड ऑफ्स करते हैं उसको देखते हैं। सप्लाई चेन में ट्रेड ऑफ कैसे होता है? सप्लाई चेन में ट्रेड ऑफ ये होता है कि आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी छोटी हो सकती है, 100% प्रोडक्शन फैसिलिटी आपकी काम कर रही होती है, और इन्वेंट्री जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो बड़ी हो सकती है, क्योंकि आपके आइटम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सीजनल होती है। ऑफ सीज़न में आप ज़्यादा प्रोड्यूस करके स्टोर कर लेते हैं, और जब फुल सीज़न होता है तो आप अपनी इन्वेंट्री से सेल करते हैं। अब ये ट्रेड ऑफ देखना पड़ता है कि ये ट्रेड ऑफ आपको सस्ता पड़ता है या ये कि आप प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ा लें और उसको अंडर यूटिलाइज रखें, मगर वेयर हाउस पे इतना इन्वेस्ट नहीं करें। तो वेयर हाउस में इन्वेस्टमेंट सिर्फ वेयर हाउस पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि असल इन्वेस्टमेंट तो इन्वेंट्री के ऊपर है, आपके इतनी सारी इन्वेंट्री स्टोर में है। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो आप 70-80% जो डिमांड है वो अपने प्रोडक्शन से पूरी करें, बाकी 20-30% डिमांड जो है वो आउटसोर्स कर दें। इस तरह से भी आप डिमांड को मैनेज कर सकते हैं। ये ट्रेड ऑफ्स हैं सप्लाई चेन के, और सप्लाई चेन के ट्रेड ऑफ्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि भाई ट्रेड ऑफ्स आप किस तरह से करते हैं। बाज़ औक़ात आप प्राइस से ट्रेड ऑफ करते हैं। प्राइस से कैसे ट्रेड ऑफ करते हैं? जनाब मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई, आप उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, आप क्या करते हैं? प्राइस बढ़ा देते हैं। जब प्राइस बढ़ा देते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि अब हम इस प्राइस पे नहीं खरीदेंगे, तो आप डिमांड को मैनेज कर लेते हैं। ये भी एक तरीका है। तो आप ये देखना पड़ता है कि कौन सा आप मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं डिमांड को मीट करने के लिए, जिसे ट्रेड ऑफ कहते हैं। ठीक है। फिर मार्केटिंग के 4 P's हैं। आपको पता है मार्केटिंग के 4 P's क्या क्या है? रूप साहब बताओ ज़रा। सर प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और पैकेजिंग, ये हाँ, मार्केटिंग के 4 P's हैं। यानी मार्केटिंग इन 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? प्रोडक्ट की प्राइस डिपेंड करती है उसके साइज, शेप और वेट के ऊपर। इस साइज का कोको कोला है, इसकी प्राइस ये होगी। इस साइज के कोक की बोतल है, इसकी प्राइस ये होगी। तो ये प्राइस को डिसाइड करते हैं। क्वांटिटी डिस्काउंट्स को डिसाइड करते हैं। क्वांटिटी डिस्काउंट्स में फाइनेंस भी इनके अंदर इन्वॉल्व होता है। फिर पैकेजिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट आइटम है मार्केटिंग का, क्योंकि पैकेजिंग का रिलेशनशिप इस चीज़ से भी है कि प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लगे, इस चीज़ से भी है कि उसके अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कस्टमर्स चाह रहे होते हैं, और बाज़ जगहों पे लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि पैकेजिंग में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और सर इसके अंदर आप जो मटेरियल होगा, मटेरियल के हिसाब से भी पैकेजिंग डिपेंड करेगी ना, कि जी बिल्कुल, मटेरियल कितनी चीज़ें लाइफ टाइम प्लास्टिक में है, कुछ चीज़ें ग्लास की बॉटल में, कुछ चीज़ें प्लास्टिक की बॉटल में, कुछ चीज़ें हार्ड इसमें कार्टन्स में पैक की जाती हैं, क्योंकि पैकेजिंग का एक पर्पस सेफ्टी भी है। सेफ्टी देखी जाती है। बिल्कुल सर, क्योंकि आज से 5 से 6 महीने पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जी। तो उसमें जो ना हमें बकेट चाहिए थी, तो मार्केटिंग वालों से, प्रोक्योरमेंट वालों से हमने क्या कहा कि जो ना बकेट मंगवाई थी, फिर मार्केटिंग से जो है वो रिलेट किया था,
ان کو بھی ہم نے انگیج کیا ہمارے ساتھ. تو شروع میں ایشو یہ آیا تھا کہ اس کو جو ہینڈل تھا جیسے اس کو اٹھایا تو ہینڈل نکل گیا ویٹ ڈالنے کے بعد. پھر ہمیں جو واٹر پروفنگ بیسکلی ہمارا وہ تھا مٹیریل تھا واٹر پروفنگ, لائک آپ DIY کی طرح ایزیلی برش کر لیں. تو اس کے لیے آپ کو مٹیریل لائف جو ہے, کیونکہ MSDS کریٹ کی تھی تو مٹیریل شیلف لائف بھی آپ کو دکھنی چاہیے. تو MSDS کا مطلب ہوتا ہے میٹیریل سیفٹی ڈیٹا شیٹ, جن لوگوں جی نے سر, یہ جی سر, ریکوائرمنٹ ہوتی ہے خاص طور پہ جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. جی سر بالکل. تو بہت چیلنجنگ تھا اس ٹائم پہ, تو مارکیٹ میں جی جا کے خود سروے کرنا پڑا تھا کہ کس ٹائپ کے بالکل چاہیے. پھر وہ پرائس ایشو آ گیا تھا ایک کہ اتنی پرائس پیکیجنگ پہ میں ہونا آپ کو چاہیے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے. ہو سکتا بالکل ہے کسی کنٹری میں آپ پلاسٹک کے پیکیجنگ میں بھیجیں وہ ان کے ایکسیپٹیبل نہ ہو, تو یہ چیزیں بھی بالکل چیک کرنی ہوتی ہیں. تو پیکیجنگ ایک امپورٹنٹ ایریا آج کل تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت زیادہ سر بالکل. سعودی عرب کہتا ہے کہ آپ کوئی ایڈیبل آئٹم بھیجیں تو پیکیجنگ کے اوپر لکھا ہونا چاہیے کہ حلال ہے یا نہیں. سعودی عرب کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ آپ کو ڈفرینٹ کنٹریز کی ریکوائرمنٹس بھی چیک کرنی ہوتی ہے کہ پیکیجنگ ڈفرینٹ کنٹریز کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. پھر پروموشن کا مطلب ہوتا ہے ایڈورٹیزمنٹ, یہ اعلان کہ آپ کا یہ پروڈکٹ ہے, اس کی یہ خوبیاں, اس پرائس سے مل رہا ہے, یہ چیز مل رہی ہے اور ان جگہوں پہ مل رہی ہے. جن جگہوں پہ مل رہی ہے وہ پلیس ہے, ڈسٹریبیوشن چینل ہے, یعنی ریٹیل آؤٹ لیٹس ہے جہاں سے آپ جا کر کے ان آئٹمس کو پرچیز کر سکتے ہیں. مارکیٹنگ ان چیزوں پہ کام کرتا ہے. اب لاجسٹکس کا ان کے ساتھ تعلق کیا ہو گیا کہ ظاہر ہے کہ مارکیٹنگ اس کو کم سے کم پرائس پہ بیچنا چاہتے ہیں. اب لاجسٹکس کی اپنی ایک کاسٹ ہوتی ہے اور پروڈکشن کی اپنی ایک کاسٹ ہوتی ہے. تو فائنانس نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہمیں اوور آل پورے سال میں ریونیو کے اوپر 10% پروفٹ چاہیے. تو مارکیٹنگ اس طرح کرتا ہے کہ کسی آئٹم پہ 4% پروفٹ رکھتا ہے, کسی پہ 5%, کسی پہ 18%. تو اوور آل وہ پھر 10% کا ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں, اور اگر نہیں اچیو کرتے ہیں تو دے آر رسپانسبل, کیونکہ پرائسنگ وہ سیٹ کرتے ہیں. تو وہ پھر لاجسٹکس پہ پریشر دیتے ہیں کہ تم را مٹیریل کم پرائس پہ پرچیز کرو, پروڈکشن کاسٹ کو کم کرو. تو یہ وہ انٹرفیس ہے جس کے اوپر یہ دونوں مل کر کے کام کرتے ہیں. یا جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا نبیل نے کہ وہ پیکیجنگ پہ بھی مارکیٹنگ کے ساتھ مل کر کے سپلائی چین نے کام کیا. تو ڈفرینٹ ایریاز میں یہ مل کر کے کام کرتے ہیں. پر ڈسٹریبیوشن تو بیسیکلی ہے ہی لاجسٹکس کا کام, جس کے اندر اب مارکیٹنگ کا رول مینیمل ہوتا جا رہا ہے. پھر مینوفیکچرنگ میں جو ہے وہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ پروڈکشن رن کی لینتھ کے ذریعے. پروڈکشن رن کی لینتھ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ مشین کو چلا دیں گے, پروڈکشن سسٹم کو چلا دیں گے, تو کتنے ٹائم کے لیے چلے گا. کچھ تو پروڈکشن سسٹمز ایسے ہوتے ہیں جو 8 آورس کے لیے چلائے جا سکتے ہیں, لیکن کچھ پروڈکشن سسٹمز ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ ایک دفعہ اسٹارٹ کر دیں تو پھر اسے اسٹاپ نہیں کیا جاتا, جیسے اسٹیل مل ہے. کیونکہ اسٹیل مل کا فرنس دوبارہ سے آن ہونے کے لیے اور فل ٹیمپریچر پہ آنے کے لیے 3 دن سے 1 ہفتہ لیتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اسٹیل مل واپس جاتے ہوئے آپ اس کا فرنس آف کر دیں. تو اس لیے اسٹیل مل کنٹینیوٹی سے چلتے ہیں, اور یہ صرف بریک ڈاؤن کے لیے بند کیے جاتے ہیں. نیشنل ریفائنری, فرٹیلائزر کمپنی, سیمنٹ ملز, یہ سب کنٹینیوٹی میں چلتے رہتے ہیں. ٹیکسٹائل ملز یہ سب بھی کنٹینیوٹی میں چلتے رہتے ہیں unless maintenance is required. 24 آورز ان کے اوپر کام ہوتا ہے. پھر وہ پروڈکشن رن جو کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز میں ہوتی ہیں وہ 8 آورس کی ہوتی ہے, ایک شفٹ میں کام ہوتا ہے, دیٹ از سفیشینٹ فار دیم. بعض پروڈکشن رن کی ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ 6 دن کے لیے ہوتی ہے یا 3 دن کے لیے ہوتی ہے, اس سے کم کی پروڈکشن رن نہیں ہو سکتی. جیسے مثال کے طور پہ PNG نے ایک دفعہ ہم سے کانٹیکٹ کیا تھا جب میں سیلز میں تھا کہ جناب ہمیں جو ہے وہ ہم سوپ بناتے ہیں, تو سوپ بنانے میں ہم پروڈکشن رن 6 days کے لیے کرتے ہیں. جب 6 days کے لیے پروڈکشن رن کرتے ہیں تو سوپ بناتے ہیں, اور سوپ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ گلیسرین بھی پروڈیوس ہوتی ہے. گلیسرین ایز بائی پروڈکٹ پروڈیوس ہوتی ہے جو میڈیکل فارماسیوٹیکل کمپنیز کو یہ سیل کر دیتے ہیں. تو اگر یہ پروڈکشن بیچ میں کہیں پر رک جائے تو گلیسرین پائپس میں جم جاتا ہے. جب پائپس میں جم جاتا ہے تو پھر اس کی مینٹیننس کاسٹ بہت ہائی ہو جاتی ہے, اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ان کے پمپ کا میکینیکل سیل فیل ہو جاتا ہے. تو دے وانٹیڈ کہ ہم ان کو کوئی ایسا میکینیکل سیل سجیسٹ کریں جو فیل نہ ہو 6 days تک. بے شک 6 days کے بعد وہ اس میکینیکل سیل کو اتار کے دوسرا میکینیکل سیل لگا دیں تو وہ ان کے لیے پرابلم نہیں.
तो हमने उनको डबल मैकेनिकल सील सजेस्ट किया था। डबल मैकेनिकल सील का एडवांटेज ये होता है कि अगर उसका पहला मैकेनिकल सील फेल हो जाए तो दूसरा मैकेनिकल सील काम कर रहा होता है, तो पंप आपका रन कर रहा होता है। पर एक पाइप से पानी राइज हो जाता है या जो भी फ्लूइड है, इन दिस केस ग्लिसरीन, वो राइज हो जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि जनाब एक मैकेनिकल सील फेल हो गया, तो फिर आप तैयार रहते हैं कि जैसे दूसरा मैकेनिकल सील फेल हो तो फिर हम शट डाउन ले लें। लेकिन वो मैकेनिकल सील इतना अच्छा था कि उनका आराम से 6 डेज निकाल देता था, बल्कि उसको कंटिन्यूटी के साथ यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्शन रन होता है, यानी बास प्रोडक्शन रन होते हैं जो पर्टिकुलर डेज में कंप्लीट होते हैं। इतने दिनों में पूरा प्रोडक्शन रन होगा तो पूरा प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट होगा, उससे कम में रन नहीं कर सकते आप। तो ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग की डेलिकेसीज होती हैं जिनको कि प्रोडक्शन वाले समझते हैं। फिर उनके लिए रॉ मटेरियल की क्वांटिटी और कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, एक रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं तो प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सकते। जैसे इस तरह ऑटोमोटिव के अंदर गाड़ी में 2000 कंपोनेंट्स लगते हैं, ऑल दोज कंपोनेंट शुड बी देयर सो दैट दे कैन असेंबल द कार। फिर इंडस्ट्रियल पैकेजिंग होती है, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में बड़ी पैकेजिंग होती है, स्मॉल पैकेजिंग कंज्यूमर्स के लिए होती है। डिफरेंट पैकेजिंग में मैन्युफैक्चरिंग वाले इसको प्रिपेयर करते हैं so that it may be sold to all type of customers, right? तो ये माइक्रो डायमेंशन है, ये इंटरफेस है। बेसिकली इंटरफेस का मतलब है कि लॉजिस्टिक्स डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ किन चीज़ों पे कॉमनली काम करता है, राइट? तो कोई सवाल, कोई साहब कुछ पूछना चाहें तो दैट पर्सन इज वेलकम। मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग बोर हो गए लेक्चर से। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है, नई चीजें हैं सारी, तो मजा आ रहा है समझने में। भाई ये चीज़ें समझोगे तो यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप इंडस्ट्री में अपने आप को दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ से ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन। मैं तो दूसरे डिपार्टमेंट को पकड़ूंगा अब ये सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ के। जी, पकड़ने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोऑपरेशन के लिए पढ़ा रहा हूँ कि ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सर सकें। समझ लूंगा तो ही पकड़ूंगा ना, हाँ, सीधे तो नहीं नॉलेज पकड़ से ही सकता। पकड़ेंगे आप, हमेशा ही यही होता है कि अगर आपके पास बिल्कुल। नॉलेज है तभी आप दूसरे को पकड़ सकते हैं। इग्नोरेंट आदमी कभी भी दूसरे को नहीं पकड़ सकता। बिल्कुल That is सर। the beauty of knowledge. चले, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं सर, बस ये समझ में तो आ रहा है लेकिन मिक्स हो जाती हैं चीजें। किसके साथ मिक्स हो जाती है भाई? ये तो कहानियां पढ़ते हैं। चैप्टर में बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही हैं, शायद मैं इस फील्ड की नहीं हूँ इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे भाई लिए। आप नहीं है तो आपके लिए तो कोई भी फील्ड अच्छी है, क्योंकि आप उस फील्ड के नहीं है। दिस इज गुड। सर मैंने बैचलर्स में ये चीजें पढ़ी नहीं है बिल्कुल भी। अरे मैंने तो मास्टर्स में भी नहीं पढ़ी थी ये चीजें। सर मैंने मार्केटिंग पढ़ा हुआ था, एचआरएम पढ़ा हुआ है, एंटरप्रेन्योर पढ़ा हुआ है, बट ये चीजें नहीं पढ़ी। मैंने तो सप्लाई चेन को फील्ड में प्रैक्टिस किया है। सर इंशाल्लाह हो जाएगा, बस थोड़ा सा डर लग रहा है। नहीं, डर वर नहीं लग रहा है, इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हम इंशाल्लाह। लोग जब वाइवा के लिए जाते थे ना यूनिवर्सिटी में, तो टीचर ने एक सवाल पूछा, 2 सवाल पूछा, उसके बाद कहा जाओ। हम कहते थे नहीं सर और सवाल पूछे। वो कहता ठीक है बेटा समझ गया हूँ, तो आज पढ़ के आया। तो जब पढ़ के आते हैं ना तो टीचर को खुद ही पता चल जाता है कि भाई ये बच्चा पढ़ के आया, तो दिस जी सर, वो तो डेफिनेटली है। गुड मार्क्स। तो आप सिर्फ पढ़िए, बाकी चीजें आप हम पे छोड़ दीजिए। हर चीज आप करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ओके सर। नहीं सर, आप ठीक तो है, अच्छे मार्क्स देते हैं, अब भी वैसे